Is my voice clear? Yes, your voice is clear and audible for us. You may start. But video is not. Can you see my video also? Yes, yes. We can see your video as well. Thank you so much, and I am have a great opportunity to welcome you all in this webinar on adeniums in winter. How do we take care of adeniums in winter? In North India, we have the biggest problem in winters when most of the adeniums they get spoiled, and winters are quite severe. So our horticulture society, I'm going to welcome you all, Mr. Jagdeep Singh, Mr. Brijesh Singh, and Mr. Subbarao, on the behalf of Horticulture Society. Our society is, though it is based in Ghaziabad, but it has members from all over India as well as abroad. The main aim of the society is to make the societies, the people, and the environment green. We also look forward to encourage people how to make their gardens and how to cultivate different types of plants and relate to their problems, how they can save their plants from the any pests and diseases and all. We have a e-magazine also, which we publish every month. So we have a larger audience today. I would request if anybody wants to get their article published, they are most welcome. And we don't charge anything for our webinars or posting the articles in the magazine. So thank you so much. I would request Mr. Jagdeep Singh, who's going to start first. Mr. Subbu, are you going to? Mr. Subbu Rao is from Coimbatore, if I'm not wrong. Yeah. So I'm from South India. So Okay. yes, I'm from South India, but dormancy here is almost zero. So I spoke to Brijesh and Jagdeep to take the lead, and then I would add on my experience onto that, because obviously they are the ones who are actually taking care of adeniums in dormancy for a while now. Yes. So they have hands-on experience much more than what I do, because for my conditions it's zero. There's no dormancy, so I'll still add my experiences and my inputs to it, and definitely will help you through this. So Jagdeep, you take your. Mr. Subbu Rao has got a adenium helpline, and which has so many members in thousands. He's been helping out to all the people, and he has a very great role to play in this webinar. So we are sure to gain from the experiences of Mr. Subbu Rao and Mr. Jagdeep Singh and Mr. Brijesh. So I welcome you all on behalf of Horticulture Floriculture Society. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, HFS, for giving this podium for us to attend this webinar and impart whatever we have learned from this winter care about adeniums and how this dormancy affects the plant and other remedial issues which you may take so that you experience zero mortality in terms of your plants, adenium plants. So basically what dormancy is, this is a phenomenon which is adhered by plants and animals in form to perinate over the unfavorable conditions or circumstances. In animal kingdom, there are many animals which go in the same phenomena, which is called as hibernation and estivation. During hibernation period, you must have seen it on Discovery, National Geographic, or on many other channels that polar bear, they eat so much, and after that they went into the caves
they sleep there for next 5 to 6 months till the favorable season come, till the favorable vegetation come, and after that they came out of it. So that process is called hibernation. So more or less same phenomenon is adopted by many plants. Today we are here talking about this particular plant called desert rose or adenium. Adenium is basically a xerophyte plant. It is a xerophytic plant by nature. We can see there is a huge codex on the base, which is a certain character of the xerophyte plants to store any amount of water they are getting from nature or by sides or by anywhere. And after that, the leaves, they are quite leathery, they are hairy, so as to absorb any amount of water in terms of humidity. They grasp it, and after that they absorb it by anyhow. We're gonna be discussing that. So डोरमेंसी में क्या होता है, अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली अभी सितंबर में जो आज का भी मौसम चल रहा था, सितंबर में थोड़ी थोड़ी रातों को सर्दी होनी स्टार्ट हो जाती है, और उससे प्लांट्स के ऊपर कुछ अलग इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. इनके फाइटोकेमिकल रिएक्शंस पे डिफरेंस आता है, और इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है. तो उसको ट्रिगर करने के लिए आप लोग सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बार फ्लावरिंग भी आती है. वो असल में प्लांट का एक मैकेनिज्म होता है. प्लांट ये अज्यूम करता है कि अभी अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली हैं, तो इट्स बेटर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. अब ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए बेसिक नेसेसिटी है कि आपको फ्लावर देना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें पोलिनेशन होगी जैसे भी, और आपके अगली प्रोजेनी चलेगी. तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आता है तो प्लांट अपने स्टोमेटाल्स को क्लोज करना शुरू कर देता है. रात के टाइम जनरली वो क्लोज ही रहते हैं, पर दिन में भी जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं तो प्लांट अपने स्टोमेटाल्स क्लोज कर लेता है. स्टोमेटा मोस्टली लीफ के लोअर साइड पे ज्यादा होते हैं, अपर साइड पे कम होते हैं. और हमने सभी ने पढ़ा है कि प्लांट अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से बनाते हैं. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स के जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फर्दर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं. तो क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से सनलाइट में, और वो ग्लूकोज क्रिएट करते हैं जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है. वही एनर्जी बाद में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रूट्स और ग्रेन्स की शक्ल में हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बोला जाता है कि वो इनिशियली फूड है, वो एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में आता है जिसको CAM ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स बोलते हैं. C3 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं, उसमें फिर एक फर्दर कैटेगरी है CAM प्लांट्स, CAM प्लांट्स, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स. तो उसमें अपने कैक्टस, सकुलेंट्स और अडेनियम्स फॉल करते हैं. मतलब ग्रेजुलेशंस, ये ग्रेजुलेशन एक फैमिली इन्होंने ऐसे बनाई हुई है जीरोफाइट्स के बेसिस पे, तो उसमें अपना अडेनियम फॉल करता है. अब उनमें प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स को दिन में जीरोफिटिक कंडीशन की वजह से अपना वाटर लॉस बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर का ग्रेडियंट प्लांट के अंदर ज्यादा बना रहे और वो उड़े ना. अब उस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये लोग बेचारे रात को स्टोमेटा खोल के खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम पे सनलाइट नहीं होती. तो एनी हाउ इनके अंदर मैलिक एसिड का क्रिएशन होता है, पायरुवेट्स बनते हैं, जो भी है वो चलता रहता है. वो एक अलग प्रोसेस है, उसका अपने को डिस्कस नहीं करना. अपने को अपने एडेनियम की विंटर केयर पे ध्यान करना है. तो उस चीज को मतलब एज ए होल हम ये बोलते हैं कि प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, अपने लीफ शेड कर देते हैं. लीफ शेड हो जाएंगे तो इनकी एक तरह से फूड फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी. लीफ अल्टीमेटली किचन का काम करती है. लीफ में सबसे ज्यादा वाटर का अपटेक इनटेक, गैसेस का अपटेक इनटेक सबसे ज्यादा वाटर इसमें लीव्स में होता है. स्टोमेटास एनी हाउ इस प्लांट के कोडेक्स पे भी होते हैं, स्टेम पे भी होते हैं, ब्रांचेस पे भी होते हैं, लेकिन वो अगर हम नंबर्स की बात करें
तो 1:100 का या 1000 का रेशो मान के चलो आप, इतनी वो है। तो क्या करता है प्लांट, ये अपने लीव्स वगैरह सब शेड करके, इससे डोरमेंसी से पहले जो बारिश आती है उनका पानी मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करके आप जो न्यूट्रिशंस देते हो या इन हैबिटेट जो न्यूट्रिशन इसको मिलता है बाहर से, उसको सारे को ऑब्जॉर्व करके ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, अपना साइज भी गेन कर लेता है। अपने पास ये अपने लिए जो इसका स्टोर हाउस है उसको रेडी करके चलता है। तो जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं पेरिनेशन। पेरिनेशन वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, दैट इज टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे यहाँ पे क्या है कि पाला गिरता है, सर्दियों में आपके प्लांट ओपन में पड़े हैं, पाला गिरता है, टिक रोट होती है, डाई बैग लग जाता है, चाहे वो रोजेज में देख लीजिए, चाहे सकुलेंट्स में या फिर अपने एडेनियम्स में। आपको प्लांट ऐसे हेल्दी सा दिखेगा दूर से, लेकिन आप उसको पकड़ोगे तो कुछ भी नहीं हाथ लगता, वो स्क्विशी हुआ मिलता है बिल्कुल। और उसके अलावा टिप्स रोट हो जाती हैं, मेन ब्रांच चली जाती है, आपका इतना महंगा लिया प्लांट, उसकी सारी ब्यूटी खराब हो जाती है। मैं पिछले 3 साल से बड़े मतलब काफी सारे मेरे पास एडेनियम्स हैं, मैं उनको पाल रहा हूँ और मेरा हार्डली कोई प्लांट मरता है जो मेरे से गलती से कहीं छूट गया होता है। अदरवाइज मेरा कोई प्लांट ऐसे एज सच मतलब बड़ा मैं कह नहीं सकता कि मेरी कैजुअलिटीज हुई हैं। इनफैक्ट मेरे जो सीडलिंग्स होते हैं वो भी कोई मतलब इतना क्या 1000 में से 2-4 मर गए तो उसका कोई इशू नहीं है, वो मतलब नेग्लिजिबल है, काउंट भी नहीं होता। तो वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करता है उसमें क्या होता है, इनका मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो हो जाता है। प्लांट सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए मतलब उसको जितना वाइटल फंक्शन जरूरी है, एटीपी की जितनी कंजप्शन जरूरी है, वो सिर्फ उतना काम करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको इसको डोरमेंसी में जाने से पहले क्या करना है, आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपको 15 सितंबर के बाद हर साल, मतलब नॉर्थ इंडिया वाले क्लाइमेट में, मैं दिल्ली से 140 किलोमीटर पे हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, आप 15 सितंबर के बाद अपने वाटरिंग जो शेड्यूल है उसको बदल लीजिए बिल्कुल। अगर आप 3 दिन में 4 दिन में एक बार पानी दे रहे थे, मतलब 72 आवर्स बोल के चलते हैं आप, 72 आवर्स में एक बार आप पानी पिला रहे थे, तो उस साइकिल को आप थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू कर दीजिए। तो होता क्या है, 15 सितंबर को आपने शुरू किया तो 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक आप ना मतलब ऐसे आ जाओगे कि 15 दिन के इंटरवल पे आ गए हो आप। उससे क्या होता है, आपका जो मीडिया है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। मीडिया जब बोन ड्राई हो जाएगा उसी के बाद इस प्लांट को अपन डोरमेंसी में बचा सकते हैं। अगर आपका प्लांट डोरमेंसी में चला गया है और मीडिया उसका ड्राई नहीं है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी प्लांट की रूट्स के लिए। क्योंकि अगर आपका मीडिया ड्राई हुआ ही नहीं है और प्लांट आपका डोरमेंसी में चला गया है, तो वो जो एक्स्ट्रा वहां पे एक मॉइस्चर है उसका प्लांट क्या करेगा, वो अल्टीमेटली आपको मतलब सडन पैदा करेगा रूट्स में। तो मैं मतलब अपना जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जुलाई ऑनवर्ड एक बार इसको सबको अपना लाइट सा डोज दे देता हूँ एंटी फंगल का। उसका मैं डाइल्यूशन करता हूँ 16 लीटर के वाटर टैंक में, और उसमें मैं अराउंड 10 ग्राम मिलाता हूँ पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, और वो मैं सभी प्लांट्स को दे देता हूँ ताकि रूट्स एक बार अप कर लें। सिस्टेमिक नहीं चलना पाने, मतलब सॉरी सिस्टेमिक चलना है, कंटेक्ट नहीं चलना उस टाइम पे। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड देने से क्या होता है, प्लांट अपनी इम्यूनिटी एक बार बूस्टअप कर लेता है। उसके बाद आपने उसको 1 महीना पानी और दिया है तो वो जितना अगर उसमें एक्सेस होगा तो वॉश आउट भी हो जाता है, उसका कोई इतना बड़ा उसमें रोल रहता नहीं है। मतलब जितना वाइटल चाहिए था प्लांट को वो उसने रख लिया, बाकी उसने डिस्कार्ड कर दिया। वैसे भी अपन इसका जो पोटिंग मीडिया है वो काफी पोरस रखते हैं, तो एक्स्ट्रा वॉश आउट हो जाता है। अभी उसके बाद क्या होता है, अभी मैं आपको जैसे दिखाऊं तो मेरे यहाँ पे प्लांट्स सर्दी वाला सीन दिखाना शुरू कर दिए हैं। मतलब इनके लीव्स येलो होने शुरू हो गए हैं। मतलब अगर सितंबर में आपके प्लांट्स के लीव्स येलो हो रहे हैं तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये इनफैक्ट एक इंडिकेशन है दैट योर प्लांट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द डोरमेंसी। तो इसको आप एनहांस कर सकते हैं कि डोरमेंसी उसमें जल्दी आए। अब जैसे ये है, ये लीफ एब्सिशन नहीं है, ये बिल्कुल इजीली प्लक हो गया। ये कोई वैसा नहीं है कि इसकी एजिंग प्रोसेस होगी थी, नो, ये लीव्स अभी आए थे और ये मतलब ऑटोमेटिकली प्लांट अपने लीव्स गिरा रहा है। ये गिरा रहा है प्लांट अपने, ये एक डायनमो प्लांट है अपना एडेनियम का, और काफी हेल्दी प्लांट है ये, इसके बावजूद ये लीव्स गिरा रहा है। तो ये है जैसे इसके लीव्स ये सारे येलो हो गए हैं, ये निकल रहे हैं आराम से। तो ये आप देख सकते हैं इस वाले प्लांट को भी,
इसका ऑटोमेटिकली सारा लीव्स शेड हो गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, प्लांट अपनी जो फूड की सप्लाई है उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है और अपने आप को वो फोर्स करता है स्टार्विंग कंडीशन में जाने के लिए। अब अगर प्लांट्स में पत्ते रहेंगे, पत्ते में आपको बताया जैसे मैंने, वो किचन का काम करते हैं, तो वहां पे वाटर कंजप्शन है। जब तक पत्ते रहेंगे, कैपिलरी एक्शन से जड़ें पानी को खींचेंगी पत्तों में पहुंचाने के लिए। पत्तों में खाना बनता है, जड़ों से पानी आता है, पत्तों में खाना बन के वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू पूरे प्लांट में रूट आउट करता है। वो सारे मतलब स्टेम में भी वही जाएगा। आपका कोडेक्स भी इसीलिए मोटा होता है। और जो मतलब जड़ों की तरफ से आपका रूट्स में से जो पानी ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है वो अल्टीमेटली लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो जब लीव्स शेड हो जाते हैं ना, दैट मीन्स प्लांट की रूट्स बिल्कुल हेल्दी हैं और उसने अपना जो वाटर अपटेक वाला सिस्टम है वो बंद कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका प्लांट इस कंडीशन में आ जाता है जो ये बिल्कुल मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस वाली कंडीशन में आपका प्लांट आ जाता है। इस कंडीशन में आने के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि या तो आप इसको मूव कर रहे हो, या ये जहां पे रखा है एज इट इज ये फॉर द नेक्स्ट पूरा विंटर के पीरियड के लिए वहीं रखा रहेगा। तो इस प्लांट में आप लोग मतलब ये इंश्योर करें कि इसका मीडिया बोन ड्राई है। अगर बोन ड्राई मीडिया है तो उसका बेनिफिट क्या है, और अगर वो वेट है तो उसका नुकसान क्या है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपका मीडिया वेट है तो आपकी रूट्स अननेसेसरी मॉइस्चर के अंदर हैं जो कि आगे जाके सड़ेंगी। मतलब ये चीज आप डेफिनेट मान के चलिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका प्लांट बहुत अच्छा है, आप उसको सुखा नहीं पा रहे हैं, नो इश्यूज, आप उस प्लांट को अपरूट कीजिए, उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, एयर ड्राई कीजिए और उसको ना फॉर द नेक्स्ट विंटर ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, कहीं पे टांग दीजिए उसको शेड के अंदर। आपका प्लांट कहीं नहीं जा रहा, इनफैक्ट उसके ऊपर भरमार फ्लावरिंग आएगी। और दूसरा ये है, लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं इनको अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट वीक में मैं सारे प्लांट्स को बिल्कुल प्रून कर दूंगा। मैं इनके लीव्स निकाल दूंगा। प्रून मतलब ऐसा सिर्फ लीव निकालने से है मेरा, मैं डिफोलिएट करता हूँ इनको सीजर की हेल्प से, डिफोलिएट करके, और इनको बस मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, लीव्स अपने सारे अलग निकल जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ, मतलब आप ये लगा लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने के लिए मैं इनको कभी पानी भी नहीं देने वाला। बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि हाँ बस उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप चाहें तो अपना जो फराटा आता है, यहाँ पे टेबल फैन आता है, अगर आप किसी क्लोज्ड रूम में रख रहे हैं तो सीलिंग फैन जो है उसको ऑन कर दीजिए और बाकी चारों तरफ से विंडोज आप ओपन कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। वेंटिलेशन अगर उसमें प्रॉपर है ना तो उसमें कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, आप बिलीव कीजिए कुछ भी नहीं लगेगा उसमें। बीच में आपका मन करेगा कि उसको हम शावर दे दें, पर वो चीज आपने हैंडल करनी है। अगर आप उस चीज से निकल गए तो आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन अब अगर हम मतलब उसमें एक बेबीज की तरह पालते हैं प्लांट्स को, अगर उस दबाव में आके हम इनको थोड़ा प्यार से और पानी वानी पिला दिया तो वो इनके लिए बिल्कुल डेथ डोज हो जाएगी, ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उस चीज से कोप अप करने के चक्कर में बेचारों को लेने के देने पड़ जाते हैं और प्लांट मर जाते हैं अपने। पाला गिरता है, पाले से बचाने के लिए आप नॉर्मल शीट यूज कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फाइबर शीट डलवाई हुई है, और जितनी मर्जी ओला पड़े, या ओला भी गिरता है हमारे यहाँ पे फैब में, और पाला बहुत गिरता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, कुछ टच नहीं होता, प्लांट्स बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। इससे पहले मेरा जो स्ट्रक्चर था, मैं कहीं किसी और जगह पे मेरी पोस्टिंग थी, वहां पे मेरे प्लांट्स बिल्कुल ओपन में रखे हुए थे। मैंने सिर्फ विंटर्स में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बनाया था, ऊपर मैंने शेड लगवा लिया था और साइड में उसके मैंने जो अपनी बैम्बू चिक्स आती हैं उसके ऊपर तिरपाल लगा के और उसको सिक्योर कर दिया था। एक साइड पूरी ओपन रही है उसकी, उसके बावजूद मेरा एक प्लांट भी रोट नहीं हुआ था उसमें। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऊपर से उसके ऊपर पाला नहीं गिर रहा, तो आपके प्लांट नहीं मरेंगे जी। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, वाटरिंग शेड्यूल्स। तो जब आपका प्लांट डोरमेंसी में होता है, उसको कोई प्लांट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप उसको स्टारो करवाइए। अगर उसको स्टारो करवाएंगे तो जब वो जागेगा ना, मतलब जब वो आप एक डेडलाइन लेके चलिए, इधर आप 15 सितंबर ऑनवर्ड अपना वाटरिंग शेड्यूल कम कर लीजिए, 15 अक्टूबर के बाद उसको बंद ही कर दीजिए। आप धीरे धीरे उसको फिर उसके बाद पानी नहीं देना है। और जो अपना वैलेंटाइन डे होता है 14 फेब, उसको आप एक हल्का सा शावर अपने प्लांट्स को दीजिए। उससे क्या होता है, वो मतलब जागने वाली उसमें ना इनिशिएट हो जाते हैं। एक दीजिए, उसके बाद 15 दिन के बाद आप हल्का सा शावर दोबारा दीजिए, फिर उसको ना फ्रीक्वेंसी को कम करते जाइए आप। मतलब 14 फेब को आपने दिया, उसके बाद आप 28 फेब को दीजिए,
28 के बाद आप 7 या 8 मार्च को मोस्टली में पहले लीव्स आते हैं, लेकिन जो आपने उसको अच्छे से स्टार्व करवाया है, अब जब प्लांट वापस उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं, तो प्लांट यही अज्यूम करता है कि आप मतलब उस जो अपना नरक था उसको काट के आए हो, आप अपने डोरमेंसी पीरियड को पूरा जी के आए हो, अभी मतलब आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करनी है। तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए प्लांट तुरंत स्ट्रेस में आते हैं, और वो स्ट्रेस में मतलब होता क्या है, अब्सेसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन होता है जो आपकी डोरमेंसी इंड्यूस करता है, चाहे वो सीड की डोरमेंसी है चाहे वो प्लांट की डोरमेंसी है। अब्सेसिक एसिड इस चीज को इंड्यूस करता है। जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन और मतलब ये दो मेन है, और एक एसीटीएच होता है वो अलग है। जिब्रेलिक एसिड और एथिलाइन इथाइलिन सॉरी, ये प्लांट की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, और जब ये ब्रेक करते हैं ना तो साथ में ही फ्लावरिंग आती है, अगर आपने अपनी डोरमेंसी में पानी नहीं दिया हो तो। सिर्फ आपने लास्ट में 3-4 बार अगर वो क्या नाम है मॉइस्चर दिया ना, उसको स्प्रेयर से स्प्रे दिया है, बस पानी नहीं देना है, उसके मीडिया को पानी नहीं मिलना चाहिए, बस आप ऊपर दे दो। वो मैंने जैसे बताया इसकी स्टेम रिसेप्टिव होती है, कोडेक्स रिसेप्टिव होता है, उसके ऊपर होते हैं स्टोमेटास, वो अपने आप इनटेक कर लेंगे गैसेस का भी, और आपके जो आपने वाटर दिया है उसको भी कंज्यूम कर लेंगे। हमने बारिश में देखा है प्लांट अपने 2 या 3 साइज के हो जाते हैं, मतलब इतना बढ़ जाता है। तो वो यही होता है, अल्टीमेटली सारा ही पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट ये। तो आपके डोरमेंसी से बाहर आएंगे ना प्लांट, तो आपको उसमें प्रॉपर उसमें आपको क्या नाम है फ्लावरिंग भी मिलेगा, अच्छे लीव्स भी मिलेंगे, और बिल्कुल सारा काम सही रहेगा। अब मैं अगर आपको ये वाला प्लांट दिखाऊं, तो कुछ प्लांट्स हैं जो नेचुरली चले जाते हैं डोरमेंसी में। अगर जिस तरह ये प्लांट है, ये डोरमेंसी में नहीं जा रहा, तो मैंने सिर्फ इसके लीव्स ना बाद में सीजर से कट कर दूंगा, और ये प्लांट फोर्स हो जाएगा अपने आप डोरमेंसी में जाने के लिए, क्योंकि इसको वाटर तो मिल नहीं रहा। सेम कंडीशन इस प्लांट के साथ है। अब ये इतनी अच्छी अच्छी फोलियज दिखा रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा इनके लीव्स काटने के लिए, लेकिन अगर आपने इनके लीव्स नहीं काटे, और सर्दियों में आप जेन्युइन सी बात है, लीव्स रहेंगे तो ये प्लांट पानी भी उड़ाएगा, पानी उड़ाएगा तो इसको नीचे से भी चाहिएगा। अगर आप लीव्स नहीं काटोगे सर्दी में, तो पानी अपने आप प्लांट नीचे से खींचेगा और उड़ाएगा। अब अगर नीचे से नहीं बचेगा, तो जो इसके रिटेन रिसोर्सेज हैं, जो इसके कोडेक्स में पानी स्टोर है, ये फिर उसको उड़ाने के लिए बाउंड हो जाता है, और जब ये उसको उड़ाता है ना, तो प्लांट आपका स्क्विशी भी हो जाएगा, और वो मतलब बिल्कुल डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला जाएगा। और कई बार वो इतना डिहाइड्रेट हो जाता है कि बियॉन्ड रिपेयर चला जाता है, और वो फिर उसको मरना पड़ता है बेचारे को। तो मतलब हमारी गलती से प्लांट ना मरे, उसके लिए आप यही करो कि पहले ही, अब ये बेस्ट सीजन है, मैं इस वीक के अंदर इनके सबके लीव्स निकाल दूंगा। लीव्स निकालने से आपके प्लांट का जो वाटर अपटेक है उस पर चेक लग जाता है। तो अगर वाटर अपटेक नहीं होगा, तो जो आपका कोडेक्स है उसकी ब्यूटी मेंटेन रहेगी, और कोडेक्स अगर आपका मेंटेन्ड है तो कोई इश्यू नहीं आता है। लीव्स अपने आप ही येलो होके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, नहीं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है कि आपका प्लांट जो है वो डोरमेंसी में जाने के लिए रेडी है, और आपको उसको असिस्ट करना है डोरमेंसी में जाने के लिए। वो डोरमेंसी में जाएगा तभी वो नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे से फ्लावर्स दे पाएगा, और अच्छे सीड्स उसके ऊपर हार्वेस्ट कर पाओगे आप। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके पास पेंडिंग हैं, तो एंड ऑफ द सेशन में आप वो सारी चीजें मेरे से पूछ सकते हैं। हम मतलब बैठे हैं, मैं अब अपने सुबू भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। सुबू भाई साहब। Jagdeep bhai, very nicely explained, and literally it was a walkthrough for the next 4 months. So thanks for sharing that, and I'm sure बहुत लोगों को फायदा भी होगा इससे। ठीक है। अच्छा, एक आपने एक सही बात कही थी कि भाई लास्ट में दिखाया था प्लांट को कि भाई डोरमेंसी में जाने दीजिए। पहले एक बात याद रख लीजिए सब कि प्लांट को डोरमेंसी जरूर चाहिए, बिकॉज यस वी आर ग्रीडी, हम हो जाते हैं, बहुत ग्रीडी हो जाते हैं कि भाई नहीं मुझे फ्लावरिंग चाहिए, मुझे फूल चाहिए, बट दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ साइकिल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन द नॉर्थ, बिकॉज
तो उसको आप कैसे ओवरकम करते हो, एंड दैट्स वन ऑफ द टेक्निक्स. either you don't either you don't water your plant. Okay, best thing is not to water the plant. ठीक है, उसको कभी वाटर ही मत कीजिए. एंड इफ इन केस यू डोंट हैव ऑप्शन, आप टेंटेटिव हो और पानी दे देते हो, तो मतलब उसको पुट करके छाव में डाल दीजिए. these are the only two methods, very simple methods. आपको शेड वेड लगानी नहीं है. आप, I think someone was asking if what happens if it's in the open. Well, if it's in the open, then you can overcome. It's a cheaper method. You can just remove the plant, put it in the shade. Just wash the roots, keep it in the shade. It's very cheap and effective way of protecting your plants from dormancy. And it's not that you're killing the plant; you're actually saving the plant. Okay, I understand everybody's emotionally attached to their plants, not only adeniums, any plants. But whatever you're doing you're doing it with a purpose. So there is no issues in uprooting the plant. The only thing you have to avoid is watering. And if it's in the open, please make sure that there is no frost on it. I think I just now saw one of members from overseas in my group posted an image of a frostbitten adenium. Once it's frostbitten, you cannot save it because the tissues will keep on dying from the top से लेके नीचे तक मरता ही चला जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका. अच्छा, तो please do not. And to be honest, in South India, like in Coimbatore, the climate for say 10 days in the month of November, December, okay, for 10 days it goes into dormancy. And also it's literally visible as well, because from the growth from October till December end, January 1st week, it's very slow. Because if everybody knows that I even germinate seeds during this time of the year, but the growth that happens to the seeds that are germinated in the month of say February and March, that is much more rapid than the ones that is germinated right now. Although they don't die, but still they grow at a very slow pace when compared to the seedlings that are germinated in the month of February and March. So conditions are required. It's not that it doesn't require, it is required. Okay, and South India, yes, there is dormancy, but still they make it up. Still they grow and it's very negligible. Okay, because some of my plants, they shed their leaves automatically, and I don't water those plants. I just look at them, and if the leaves are falling, okay, don't water the plant. Keep it aside for say 7 days, and just check on it every day. Because first mistake as a beginner that most people make is पत्ते झड़ रहे हैं तो मतलब प्लांट मर रहा है. ऐसा नहीं है. फर्स्ट आइडेंटिफाई डोरमेंसी. प्लांट डोरमेंसी में डोरमेंट जा रहा है या फिर अंडर वाटरिंग हो रहा है, न्यूट्रिशन कम है, ये सब आइडेंटिफाई करना जरूरी है. एंड फर्स्ट मेन रीजन इज नाउ it's going dormant, so if the leaves will fall, so don't water. If you see any leaves falling, don't water for a week or 2. Just check on the codex. If the codex is still hard, that means it's going into dormancy. So उसको हाथ मत लगाइए, उसको रख दीजिए, कोने में रख दीजिए, मतलब keep it in a shade. Don't water it. That's the best remedy. And if you can afford, have a shade house or a poly house. Okay, and the reason for poly house is not for moisture or humidity here. It's to avoid the frost falling on the leaves and on the stems. They are so sensitive. Xerophytes are very sensitive. अगर थोड़ा सा भी temperature variation होता है तो भाई मर जाते हैं वो लोग. तो इस पे frost गिरेगा, dew गिरेगी, फिर सुबह धूप भी आएगी. So it will create a big problem for you. So to avoid the frost falling on the plants, you can have a shade, and you can cover the sides so that the cold winds are my biggest killer of adeniums. Cold winds does not hit the codex of the plant or even the branches. उसको एक चारों तरफ से कवर कर लीजिए ऊपर तक. Okay, so ventilation रहना चाहिए, लेकिन रात की जो ठंडा हवा पड़ती है उसको मत पड़ने दीजिए. ठीक है. So these are the only two tips that I would like to share with you guys. Okay.
later I'll show you, I will show you more examples once I start taking more questions from you guys. I have few examples because right now in my house. So yes, I still do have some examples of ADMs on my rooftop. I'll show you that as well. So nothing more to add to it. So anything else, Jagdeep bhai, you want to add to this? आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जो कोल्ड विंड्स और फ्रोस्ट बाइट है वो एक परफेक्ट रेसिपी है प्लांट को मारने के लिए। अल्टीमेटली वही होता है कि कोल्ड विंड्स आती हैं और ट्रांसपिरेशन तो होना ही है। प्लांट को अगर कुछ भी मिलेगा वो उसको अडेयर करेगा, अंदर लेगा, और अगर वो गया तो उसका मेटाबॉलिज्म पूरा रप्चर हो जाता है। और एक बार उसके सेलुलर लेवल पे जब ये चीजें पहुंचती हैं तो वो फिर बियॉन्ड रिपेयर है। फिर आप उसको काट लो, टांग लो, जो मर्जी कर लो, प्लांट आपका जो आपने इतनी मेहनत से लिया है, पाला है, या फिर मतलब सीड से ग्रो किया है, वो बचेगा नहीं। तो उस चीज को टैकल करने के लिए बेस्ट है कि आप शुरू से ही चीजों को संभाल के चलो, तो वो बिल्कुल खराब नहीं होंगी। अब ये कि सुपर डॉग है, ये नेचुरली डोरमेंसी में जा रहा है, तो मैं क्यों इसको पानी दूंगा? अच्छा, सिर्फ एक लीफ बचा है, इसको निकाल के इसको डोरमेंसी में जाने देते हैं। और जो बाकी प्लांट है, मैं तो फोर्स करता हूँ सबको डोरमेंसी में जाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि डोरमेंसी इज अ मिथ। पर्टिकुलर सेलर्स हैं काफी सारे ऐसे, और लोग हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, और वो लोगों को मतलब मिसगाइड करते हैं कि डोरमेंसी जैसा कोई फंडा है ही नहीं इंडिया में। बिल्कुल है जी। अगर मतलब आप या तो उन ग्रीडी सेलर्स की बात मान के और उनके हिसाब से प्लांट रखोगे, अल्टीमेटली आपको मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन आपके पास अच्छे प्लांट्स नहीं रहेंगे जो मतलब ओवर द मनते हैं। या तो मतलब आप टिप्स को फॉलो कीजिए, मैं इनको कर रहा हूँ। मेरे पास भर भर के एडेनियम है। इस टाइम पे मेरी रूफटॉप पे अराउंड 2000 एडेनियम है और नहीं मरते हैं जी। मैंने ये तरीका पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं जो मतलब मेरे टच में है लोग, उनके साथ मैंने शेयर किया। इनफैक्ट दिल्ली के क्लाइमेट में लोगों के मरे हैं। करके कुछ लोग, जैसे दिल्ली में स्पेस का एक कंस्ट्रेंट्स है, तो लोगों ने प्लांट्स को अपनी बालकनी से उठा के लिटरली अपने मतलब लिविंग एरिया में और ड्राइंग रूम्स में, जहां पे भी थोड़ा सन आता है, तो वहां पे रखा था उन्होंने अपने प्लांट्स को। और वो सारे प्लांट उनके पूरी विंटर, दिल्ली की विंटर सर्वाइव करके ही बाहर आए हैं, और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी हुई है। प्लांट्स रोट नहीं हुए उनके। उन लोगों के लिटरली मेरे को थैंक्स वाले मैसेज आए हैं कि जी हमारे प्लांट बच गए इस बारी। तो अच्छा है, मतलब जो हमारा तरीका है वो टेस्टेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। बस एक है, आप अपना मीडिया ड्राई कर लीजिए डोरमेंसी से पहले, लीफ आप निकाल दीजिए। एक ग्रेडियंट बनता है, मतलब आप समझो कि यहां आप पानी डाल रहे हो। मैं जैसे एक सिंपल है कि हम लोग प्लांट में पानी यहाँ चल रहा है और वो मतलब पत्ते यहाँ हैं, तो ये यहाँ तक पानी कैसे पहुंचता है? पत्ते पानी उड़ाएंगे, एक प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है, तो वो नीचे से पानी को खींचता है, ऊपर जाता है। अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो पानी को खींचेगा कौन? पानी अगर ऊपर नहीं जाएगा तो आपका प्लांट के अंदर कंडक्शन नहीं हो रहा है पानी का, जो उसके अंदर उसके रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज से वो काम चलाएगा। और जब लीफ ही नहीं रहेंगे तो वो मतलब एक मिमिक कर रहे हो आप उस एक्शन को, जो नेचुरली इनके हैबिटेट में होता है, उस एक्शन को आप मिमिक कर देते हो कि आपने लीव्स निकाल दिए तो यहाँ पे से पानी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। अब अगर इनका पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो प्लांट को जो जरूरत है पानी, वो उसके अंदर ऑलरेडी है, उसी से वो अगले 3 महीने 4 महीने काम चलाएगा। और अच्छे से ये फिर डोरमेंसी में रहता है। आपका पोटिंग मीडिया देखिए, मेरा मीडिया, मैं इसके अंदर पूरी उंगली भी डाल रहा हूँ तो वेट नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ड्राई है मीडिया, ये बिल्कुल रेडी है उसमें जाने के लिए। अभी बस इनके लीफ प्रून करने हैं। मैंने, ये ऑलरेडी डोरमेंसी में गए हुए हैं सारे के सारे, बस लीफ प्रून करेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से 3 महीने 4 महीने निकाल के आएंगे। कोई इनमें फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं प्लांट्स। और और एक सारे के एडवांटेज सारे, भी, या शायद आपने एक एडवांटेज भी बताया हुआ था कि भाई जब प्लांट 2-3 महीने डोरमेंसी में जाता है, पहले उसमें आती है फ्लावरिंग। और बिल्कुल मार्च महीने में जब आप अच्छा खाना वाना देते हो, मतलब न्यू सॉइल फर्टिलाइजर डालते हो, अच्छा सबका रहता है, मन करता है गुच्छे गुच्छे में फ्लावर खिलना है। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करो, गुच्छे गुच्छे में आपको फर्टिलाइजर भी देने की जरूरत नहीं है, प्लांट में सिर्फ फ्लावर्स ही लगे रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा उसमें। दैट्स मोर देन इनफ। was going to die and now there are favorable conditions, so I must reproduce to produce my offsprings. तो हर किसी का पहला इंस्टिंक्ट यही रहता है कि अपनी मतलब जनरेशन पैदा करो आगे वाली।
तो उस चीज को मतलब आप लोगों ने ना मतलब बिना केमिकल्स के, ये एक नेचुरल मेथड है उस चीज को मिमिक करने के लिए। मतलब आप जो नेचुरली इसमें एक्शंस होते हैं इसकी हैबिटेट में, उस चीज को मतलब इन जो तरीके से जो हमने आज डिस्कस किए हैं कि आपने अपना वो मीडिया ड्राई करना है, लीव्स निकाल देने हैं, पानी के ऊपर आपने चेक लगाना है वाटरिंग शेड्यूल पे, तो उन चीजों से आप इसको एक्शन को मिमिक कर सकते हो। अब ये जैसे स्वाजिकम है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, स्वाजिकम है, इसमें हम पानी नहीं दे रहे पिछले कई टाइम से, क्योंकि मैंने इस साल इसको सिर्फ ग्रो नहीं दिया था, और इसमें ना हमने कोई पोलिनेशन की ना कुछ और। ये देखिए आप, ये एक अच्छा सा स्वाजिकम है और इसके सारे लीफ अपने आप निकल गए हैं। सो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि ये प्लांट डोरमेंसी में जाना चाहता है, तो मैं इसको नहीं फोर्स करूंगा, इनफैक्ट मैं इसको असिस्ट करूंगा। और वो जैसे सुबू भाई ने बोला है कि अगर प्लांट के लीफ येलो हो रहे हैं तो दैट इज नॉट कि आप प्लांट को मतलब आपका प्लांट मर रहा है, नहीं। अब इसके लीव्स येलो हो रहे हैं, मैं इससे ऑलरेडी इतने पोट ले चुका हूँ, होने दो येलो। अब इसको निकाल देंगे, इसको जो ये ग्रीन लीव्स हैं इनको भी निकाल देंगे। ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं सोना है, मुझे इसको रेस्ट करना है, इसको रेस्ट करने देंगे थोड़ा टाइम। और उसके बाद जब ये प्लांट वापस उठेगा तो ये बिल्कुल बंडल्स के साथ उठेगा, आपको बुके देगा, ये प्लांट्स फ्लावर के बुके आएंगे इसके ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने संदीप रोहिला जी से कि सेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर राउंड है उसके लिए प्रोसीड कीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। Thank you, Jagdeep bhai. Thank you, Subbu bhai. Everyone, you can ask your question one by one. The humble request, just one by one. संदीप भाई, आप तो उस क्वेश्चन लाइन से जो क्वेश्चन आया हो आप एक एक बार हाँ, मैं फेसबुक लाइव से भी अभी पढ़ रहा हूँ और यहाँ से भी पढ़ रहा हूँ। Till now, if anyone can ask. एक आध क्वेश्चन आया है, मैं भी दिखा देता हूँ, लगता है कि One question is कि what about the seedlings in winter? अच्छा देखिए, seedlings are very sensitive to handle in winters. Okay, either you follow the same process, क्योंकि उसमें पानी दे नहीं सकते आप, and seedlings 2-3 months old seedlings will need some moisture to grow. तो either you uproot it. मैं आपको शायद अभी आज एग्जांपल दिखा नहीं पाऊंगा, शायद मैं अपने ग्रुप में कल पोस्ट करूंगा। मैंने कुछ सीडलिंग्स जून महीने में सीडलिंग ट्रे से निकाल के बाहर रख दी है, और 3 महीना हुआ है मैंने रिपोर्ट नहीं किया उसको, ना ही वो डिहाइड्रेट हुआ है, सिर्फ उसके पत्ते गिरा दिया है और कुछ नहीं हुआ है। So you can try that method with this as well, because if they are not dying during that period, so I'm not sure if they will die in future as well. Okay, क्योंकि seedlings को आप, या फिर if you have controlled conditions कि भाई आप maintain कर सकते हो 20 के ऊपर 22 के ऊपर temperature maintain कर सकते हो, then you can go ahead and follow the same schedule. But if you don't have those arrangements, then better cut down on the watering. पत्ते गिर जाएंगे पूरे, उसके गिर जाएंगे, एक भी पत्ता नहीं रहेगा, लेकिन उसको पानी मत दीजिए। अगर आपके पास 10 सीडलिंग्स है, उसमें से 3-4 मरेंगे, 5-6 बच जाएंगे, लेकिन आप उसको सेम फॉर पानी देते रहोगे, 10 के 10 मर जाएंगे। सो दैट इज द ओनली एडवाइस, प्लीज डोंट water your seedlings at the moment. Better leave them bone dry for at least say 2-3 months if they are dying, if they are too sensitive. And also size of the cortex also matters, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि 2-3 महीने का सीडलिंग किसी का it's less than my finger size, वैसे प्लांट्स बचना बहुत बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट क्योंकि यहाँ पे 2-3 महीने में तो एटलीस्ट becomes 1.5 finger हो जाता है यहाँ पे, so maybe it survives for me, but the size of the cortex also and it matters। भाई एटलीस्ट थोड़ा तो मोटा होना चाहिए, पतले सीडलिंग रहेंगे तो भाई obviously it's very hard to save it। बिल्कुल सही बात है सुबह भाई आपकी। हमारे क्लाइमेट में, मतलब नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में पर्टिकुलरली, जो सीड सोइंग है दैट शुड बी इन मंथ ऑफ मई बस। उसके बाद अगर आप सीड सो कर रहे हो तो बस वो रिक्रिएशनल पर्पज है कि हाँ जी आपने सीड टिश्यू कल्चर मेथड से उगा लिए एंड ऑल दैट, वो बचेंगे नहीं आपके। अगर मतलब बचाने हैं तो प्रॉपर आपके पास सेटअप होना चाहिए, ग्रो लाइट्स वगैरह लगाइए तो वो बचेगा। अदरवाइज वो मतलब इतना ग्रोथ ले नहीं पाता है जितनी जल्दी उसके अंदर बाकी फैक्टर्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेस्ट टाइम है मार्च, अप्रैल और मई, बस इन 3 मंथ में जो भी सीडलिंग लगाया है, वो जो आपने बताया है कि 2 फिंगर साइज पे सीडलिंग पहुंच जाता है,
वो जो 2 फिंगर साइज वाला सीडलिंग है, जैसे मैं दिखाऊं आप, तो जो मेरे मे मंथ के सीडलिंग्स हैं वो हैं उस साइज पे, और उसके बाद वाले हैं वो फिर वही है, वो पतले रह जाते हैं और फिर वो टैकल नहीं कर पाते उस चीज को। ये वाला पोट मैंने, हाँ, सारा ये मार्च में लगाए थे, और ये अभी डिसेंट साइज पे हैं, और आई एम श्योर ये बचेंगे आराम से, क्योंकि इनमें ब्रांचेस भी आ गई है और लीव्स भी काफी हैं, तो नहीं, ये इनको मैं, बच जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद वाले जो हैं उनका थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए मुझे अलग से वो एक सेटअप रेडी करना पड़ेगा। और अभी किसी ने पूछा है इसमें एक क्वेश्चन कि वो वाटरिंग शेड्यूल, तो वाटरिंग शेड्यूल और जो आपका लोकल क्लाइमेट कैसा है और आपने पोटिंग मीडिया क्या अडोप्ट किया है, उस चीज के हिसाब से वाटरिंग शेड्यूल बदलता रहता है, वो किसी के लिए भी फिक्स नहीं है। आइडियल पोटिंग मीडिया जैसे सबके लिए चेंज होता है, तो वैसे ही आपकी वाटरिंग शेड्यूल भी चेंज होती है। तो एक रूल पकड़ लें कि हाँ भी 72 आवर्स में ही पानी देना है, तो वो चलता नहीं है। तो कई बार आपको हो सकता है गर्मियों में भी एक पानी देने की जरूरत ना पड़े, बारिश हो रही है लगातार, और कई बार ये होता है कि आपको डेली भी पानी देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर में 48 भी जाता है, और वो 48 लिटरली सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहता है। तो प्लांट्स का बिल्कुल ना, मतलब पोटिंग मीडिया का बुरा ही हाल हो जाता है, उसमें पोर्ट्स लिटरली मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरे पास प्लांट टैग्स हैं, प्लांट टैग्स मेरे मेल्ट हुए हैं, इतनी गर्मी पड़ती है जी यहाँ पे, और वो उनके ऊपर लिखा हुआ जो परमानेंट मार्कर से वो सारा वॉश आउट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है प्लांट टैग। तो इसके लिए मतलब बेस्ट वही है, जब आप डोरमेंसी में लेके जा रहे हैं तो वाटरिंग शेड्यूल की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपको जब डोरमेंसी में आपका प्लांट इनिशिएट हो रहा है तो उसको धीरे 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 उस चीज को बढ़ाना है, और जब डोरमेंसी से बाहर आएगा तो उसको धीरे 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 कम करना है। तो एक वो साइकिल है, उस साइकिल को अगर आप पकड़ लेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा। मतलब जैसे 72 आवर्स का विंडो है आपका, मतलब ऑन एन एवरेज आपके ग्रोइंग पीरियड में, तो जब वो बिफोर डोरमेंसी है उसको आप धीरे 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 कम कर दीजिए उसको। कोई थंब रूल, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप सही से जज कर नहीं पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, कॉडेक्स को पकड़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कॉडेक्स हार्ड है तो पानी मत दीजिए, थोड़ा सा दब रहा है फिर पानी दीजिए, लेकिन डॉर्मेंसी में चाहिए ही नहीं पानी। तो फिर भी आप अगर इफ यू वांट कि आपको आपके मीडिया के हिसाब से आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या वाटरिंग साइकिल क्या है, तो सिर्फ कॉडेक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। कॉडेक्स अगर थोड़ा सा दब रहा है देन यू कैन वाटर, लेकिन डॉर्मेंसी में लेकिन कॉडेक्स कभी दबेगा नहीं। इफ इट्स हेल्दी प्लांट, नहीं डॉर्मेंसी दबेगा में कॉडेक्स दबेगा नहीं, जी। बिल्कुल नहीं दबेगा। और अगर किसी का दब भी रहा है तो उस प्लांट को आप थोड़ा सेपरेट करके और उसके ऊपर जस्ट वाटर स्प्रे कर दीजिए, मतलब मीडिया को टच नहीं करना है पानी में, वाटर स्प्रे कर दीजिए, आपका प्लांट 2-3 स्प्रेज में हार्ड हो जाएगा, वो इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है वहां से। तो ये अब मैंने कॉडेक्स पे ध्यान 2-3 बार, दीजिए। हाँ जी, ये 2-3 बार कॉडेक्स, मैंने ऑब्जर्व किया है, हो जाता है ऐसे। वही अगर आपको पता भी नहीं है कि भाई ना आज पता, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया सबका अलग रहता है ना, तो क्योंकि मैं से कोई कोई सिंडर यूज करता है, कोई बजरी यूज करता है, कोई एम सैंड भी यूज कर लेते हैं, कोई कोई और कोई गार्डन सॉइल भी लगा देते हैं। तो आपको अगर पता नहीं है तो ऑब्वियसली जस्ट कॉडेक्स पे ध्यान दीजिए, कॉडेक्स दबा दबा के देखिए, अगर हार्ड है छोड़ दीजिए, पानी मत दीजिए, दब रहा है जैसे जग्गी भाई ने बताया स्प्रे मार दीजिए, उतना ही काफी है सिर्फ कॉडेक्स पे, नथिंग अभी एल्स। एक सर ने बोला है कि मेरे जो नोवा और स्वाजी हैं वो सिर्फ विंटर्स में फ्लावर देते हैं, तो फ्लावर नहीं लेने चाहिए क्या? तो उसमें क्या है सर, अगर आप विंटर में मतलब फ्लावर आ जाएंगे, किसी भी प्लांट में बोलो आ जाएंगे फ्लावर, लेकिन उनका फ्लावर का यूटिलाइजेशन क्या है, आप उनको पोलिनेट भी नहीं कर सकते। और मल्टीफ्लोरम तो एक स्पीशीज ही ऐसी है जो सर्दियों में फ्लावर देती है, उसके लिए परफेक्ट एक वेदर का ग्रेडियंट है कि बिलो 10 डिग्री आता है तो वो फ्लावर देता है। तो या तो आप विंटर्स में फ्लावर ले लो, अगर विंटर्स में फ्लावर आप अवॉइड करोगे तो जो स्प्रिंग सीजन में जब सबके फ्लावर्स आएंगे तो आपके पास पिक्चर क्लिक करने के लिए कुछ नहीं होता है, और आपका प्लांट भी मतलब उस टाइम मिस करता है फ्लावरिंग को, और सिर्फ लीफ लीफ दिखाएगा। तो फोलिएज अच्छा आएगा नो डाउट, लेकिन फ्लावर्स और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं स्प्रिंग में। तो आप देखो एक बार ये चीज करके, अगर आप डोरमेंसी के बाद फ्लावर्स लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और फ्लावर्स जो बनते हैं मतलब इस टाइम पे बनते हैं, डोरमेंसी में बनते हैं, 1 2 3 मैक्सिमम उतना ही बनते हैं, गुच्छे में नहीं बनते, गुच्छे में नहीं बनते कभी भी। और बाई चांस वो देखो पॉलिनेट भी कर लिया। और ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हेन इट्स फ्लावरिंग ऑल द एनर्जी विल गो टू द फ्लावर बिल्कुल, ओनली, पूरा मैं एनर्जी बिल्कुल इसी फ्लावर पे पॉइंट पे आ जाएगा। रहा था। हाँ, मेरी और सुबू भाई की एक दिन बात हुई थी कि जो फ्लावरिंग प्रोसेस है दैट इज मोस्ट टीडियस प्रोसेस फॉर द प्लांट।
उसका बहुत एनर्जी लगता है उसमें। और फर्दर अगर फ्रूट बन रहा है, मतलब जो अपने एडेनियम के केस में सीड फॉलिकल बनते हैं, तो जो फॉलिकल्स जो सीड पोड बनते हैं उसमें तो प्लांट की अल्टीमेट एनर्जी लगती है। मतलब आपका प्लांट ऑलरेडी स्टार्विंग कंडीशंस पे है और उससे आप मतलब बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो एक तरह से, तो वो फिर अलग है। वो मतलब वो चीज आप प्लांट के लिए जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज की कोई भी। जस्टिफिकेशन के बाद और लिटरली इज पुटिंग स्ट्रेस, उसको इतना स्ट्रेस करोगे लाइक एट लास्ट यू माइट लूज द प्लांट एट द बिल्कुल बॉटम में, यू डोंट लूज द प्लांट, राइट? तो आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, बेस्ट टाइम यू डू इट इन फरवरी मार्च। एक आध फ्लावर लग गया, चलो भाई एक फोटो लीजिए, उसको तोड़ के रख दीजिए। सीरियसली मैं खुद पॉट्स तोड़ता हूँ कभी कभी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल इस प्लांट बिल्कुल पे पॉट नहीं चाहिए तो पॉट तोड़ देता हूँ। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सुबू भाई ने पॉइंट आउट किया है कि अगर आपके किसी भी प्लांट में इस टाइम पे पोड्स आए हुए हैं और आपके यहाँ पे विंटर्स में 10 डिग्री से नीचे या मतलब 15 डिग्री से भी बोले अगर नीचे जाता है, तो बेटर है आप अपने प्लांट के साथ अन्याय नहीं करोगे अगर आप उसके पोड्स हटा दोगे तो। क्योंकि प्लांट की बहुत सारी एनर्जी है जो उसको डोरमेंसी के टाइम पे काम आती है, वो वेस्ट नहीं होगी सीड पोड को बड़ा करने में। और वो सीड्स मैं आपको सही बताऊं कि जर्मिनेशन रेट बहुत कम होती है। अभी एक भाई ने बोला है कि जोधपुर में, और जोधपुर में जी वहां पे रात काफी ठंडी होती है, तो आता है जी वहां पे भी डोरमेंसी वाला इशू। पर आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि दिन में आप लोगों के यहाँ पे अच्छी धूप खिलती है और उसमें जो प्लांट के ऊपर वो पाला वाला गिरने की संभावना तो बिल्कुल जीरो सी रहती है जी। और आपके प्लांट अच्छे से चलते हैं। हमारे इनफैक्ट एक फ्रेंड हैं ब्रजेश कुमार जी, इनके काफी सारे प्लांट राजस्थान में ही रखे हैं और इनके प्लांट में डोरमेंसी ना के बराबर ही आती है। पाला गिरता है जी यहाँ पे, अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, तो इनफैक्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फंड्स भी जारी करते हैं यहाँ पे अपना रबी की फसल के लिए। रबी की फसलें खराब होती हैं पाला गिरने से। गेहूं की फसल में पता नहीं कितनी बार नुकसान होता है, यहाँ पाला बहुत गिरता है। फेसबुक से क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे प्लांट पे सीड बोर्ड पॉड बस्ट होने वाला है इन कमिंग 20 डेज, तो क्या मुझे नवंबर में उनको ग्रो करना चाहिए या फिर मार्च के लिए वेट करूं? बेस्ट है जी, अगर आपके पास इस टाइम सीड हार्वेस्ट होते हैं तो उनको सीड्स को हार्वेस्ट कीजिए और उनके ऊपर जो टफ्ट ऑफ हेयर होते हैं बिल्कुल एंड्स पे, उनको निकाल दीजिए। बिल्कुल फ्रेश आप सीड अपने लेके उनको एक जिपलॉक पैक में डाल के उसको फर्दर एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के दोबारा जिपलॉक में डाल के और फ्रीजर में रख दीजिए। तो वो जो आपके सीड्स हैं वो नेक्स्ट सीजन के लिए भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। उनकी जर्मिनेशन रेट मोर और लेस 1-2% से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। अगर अभी आप लगाते हो 90% या 100% आपकी जर्मिनेशन है ना, तो उस टाइम बस इतना ही डिफरेंस आता है कि आपके 5-7 सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी पोड पूरी सक्सेस देगी। वैसे भी जो आपकी पोड होती है, पोड के जो बिल्कुल कॉर्नर वाले होते हैं ना सीड्स जो बनते हैं, वो वैसे भी आपके कम जर्मिनेशन देते हैं। जो मिडल वाले सीड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जर्मिनेशन देते हैं। आप कोने वालों को कभी अलग से लगा के देखो, जर्मिनेशन रेट का जो सारा खेल है वो वहीं पे होता है, अदरवाइज 100% ही आती है। मेघना जी का एक क्वेश्चन है कि इफ देयर इज नो डोरमेंसी इन साउथ इंडिया नथिंग नीड्स टू बी डन। इसका आंसर आई थिंक सुबह भाई दे पाएंगे। See, it's not like that कि there is no dormancy in South India, so nothing can be done. ऐसा नहीं है. See, as I told you, you need bunch of flowers on your adeniums. Okay, if it's flowering for 12 months, यहाँ पे 10-12 महीना तो फ्लावर लगते ही लगते हैं क्योंकि क्लाइमेट ऐसी है। लेकिन प्लांट का हेल्थ भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि भाई 12 महीने फ्लावर दे रहा है प्लांट, तो मतलब उसको आप कितना एक बार तो रिपोर्ट करना ही करना है आपको, क्योंकि यू आर ग्रोइंग इट इन अ पॉट, so you don't have nutrients being supplied to it on a regular basis. मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ आपको लाइव में, इसलिए मैं ऊपर छत के ऊपर आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये है मेरा एमराल्ड क्राउन, ठीक है। ये पिछले फरवरी में पहला फूल आया था, पहले पॉड लगे थे, अभी तक इसमें फूल और पॉड आ रहे हैं। लेकिन मैंने इसको अभी तक बदला नहीं है। पॉट बदलना था मुझे, लेकिन बदला नहीं है मैंने अभी तक। तो मैंने ये इसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी लालच हो गई थी इस साल, सीड्स की महामारी चल रही थी, तो मैंने सीड ज़्यादा ले लिए इससे। तो अभी क्या करूँगा, जब ये पॉट्स हार्वेस्ट हो जाएंगे, आई विल रिमूव दिस प्लांट फ्रॉम द पॉट। इसको निकाल के 3-4 महीना मैं इसको पॉट नहीं करूँगा।
ताकि ये डॉर्मेंसी में जाए। आई वांट टू इंड्यूस डॉर्मेंसी टू, ताकि ये रेस्ट ले ले, क्योंकि भाई इतने मेहनत कर लिए पूरा साल इसने, तो इसको मैं जो डॉर्मेंस में जाने दूंगा ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि इट्स अ मदर प्लांट फॉर मी। तो इसकी हेल्थ बनाई रखी ना, थोड़ी बहुत रेस्ट चाहिए इसको। तो 3-4 महीने रेस्ट करूंगा, रेस्ट दूंगा इनको, फिर उसके बाद वापस पॉट करके वापस इनमें से सीड्स निकालूंगा, एंड आई विल गिव इट अ बिगर पॉट एंड मोर न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास डॉर्मेंसी नहीं हो रही तो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फिर उसमें से फ्लावरिंग ले रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। लिटरली इट विल किल योर प्लांट। आई टेल यू, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग बहुत सारा, साउथ इंडिया में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि मेरे में रेगुलर फ्लावर्स आता नहीं है। उनका रीजन वही रहता है कि आपने प्लांट को सही से रेस्ट दिया नहीं है। इफ यू डोंट गिव इनफ रेस्ट टू योर प्लांट्स, दे विल नॉट फ्लावर इन बंचेस। एक आध फ्लावर आएंगे लेकिन ऐसे बंच में फ्लावर्स खिलेंगे नहीं कभी भी, वो जानता हूँ मैं। और मेरे फ्लावर्स इसलिए बंच में खिलते हैं ताकि मैं उनको रेस्ट देता हूँ। सेम विद दिस डायमंड क्राउन एज वेल। इसमें रेयरली बहुत कम पॉट बनते हैं, इससे इतने सारे फूल है। इट हैज बीन फ्लावरिंग फॉर ऑलमोस्ट 10-15 मंथ्स लिटरली। अभी इसको मेरा आइडिया है, इसको मैं थोड़ा ब्रांचेस काट के इसको बॉन्साई शेप देना था मुझे, कैनपी बनानी थी। तो ओके, आई अगेन दोनों एक साथ मैं पॉट से बाहर निकालूंगा, फिर इनको कम से कम 3-4 महीने तो बाहर रख के उसके बाद वापस पॉट करूंगा, so that they get enough rest and come back with more flowers, more blooms and more health. So definitely you have to, it's a choice for you. You can do it in this in South India. Your plant will be healthy, they will live for a long period, they'll give you enough flowers and fruits. So that's my opinion. मेरा एक क्वेश्चन था शुभू जी, हाँ जी बोलिए। सीडलिंग के बारे में। अभी ये 4 मंथ के सीडलिंग है। हाँ जी। तो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं? गुजरात के नहीं हिसाब से अभी 30 टेम्परेचर है। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज मतलब पॉट बदल रहे हैं या फिर पत्ते काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं डीएम के साथ, एल्बम पर वो सो नहीं उस दिन थी, आज तो नहीं है। मैम कैन यू बी प्लीज ऑन म्यूट इफ यू माइंड, सॉरी। अच्छा, देखिए, whenever you do anything to your plants, adenium especially, ध्यान रखिए कि whatever you're doing is going to have उसका next 3 months उसमें वहाँ पे क्लाइमेट क्या होने वाला है। ठीक है, आज से क्लाइमेट सही है, फेवरेबल, आपने पॉटिंग कर दी, लेकिन उसके बाद आपके यहाँ टेम्परेचर कितना तक जाता है नीचे? 10, 12, 15, 19 तक चली जाती है। 15 से 19। हाँ, तो मैंने शायद थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे साउथ इंडिया में भी सीडलिंग्स बहुत बोलते हैं कि कम रेट तेजी होती है उनकी, बहुत स्लो होता है उनका ग्रोथ कंपेयर टू फरवरी जनवरी में जो ग्रोथ होती है उससे आधी रहती है ग्रोथ। तो मतलब वो टेम्परेचर चेंज भी इनको इम्पैक्ट करता है। सो वाटरिंग शेड्यूल ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतने सारे सीडलिंग्स हैं आपके पास, आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। इतने सारे वाटरिंग शेड्यूल नहीं देख पाओगे। इससे अच्छा आप उनको जनवरी फरवरी में रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आपके पूरे पॉट फाड़ के आ जाएगा बाहर। नो, भले उसके शेप थोड़ा बिगड़ जाएंगे, लगता है आपने इसमें पॉट में लगा दिया, शेप थोड़ा बिगड़ जाएगा, लंबे लंबे बन जाएंगे, बट रिपोर्टिंग करेंगे तो आप उस पर रिस्क ले रहे हैं कि भाई आधे से ज्यादा खराब हो सकते हैं। सो इसको आप पहले ही रिपोर्ट करना था। अगस्त में कर देते तो शायद चलो मैं बोल देता कि कर लीजिए, रिपोर्टिंग कर लीजिए। नाउ ये अक्टूबर हो गई है, क्योंकि उसके जड़े पकड़ने में 2 हफ्ते लग जाएंगे आपको, कम से कम 2 हफ्ता लग जाएगा। तो मतलब लिटरली अक्टूबर, आधा अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर दिसंबर तो ऐसे ही टेम्परेचर नीचे चली जाएगी। तो अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो पानी का शेड्यूल जरा ध्यान रखिएगा, उसको हर दिन चेक करते रहिएगा, जितना कम हो सके पानी दीजिए। ठीक है, वही रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, थैंक यू। One question is from Ali Bhai on Facebook. बोलिए। It's not related to dormancy. He is asking how to control the branch. Branches on Arabicum. अच्छा, How to control the branch? अच्छा देखिए,
अरे भाई यहाँ ब्रांच कंट्रोलिंग तो सब यहाँ पे प्रूनिंग करके करते हैं, लेकिन इंडिया में तो फेमस है कि भी पूर्ण एडीनियम्स नहीं बेचने। ठीक है, पूर्ण एडीनियम्स आर वेरी बैड। देखिए ऐसा ट्रेंड कुछ नहीं है। देखिए बट इफ यू वांट टू कीप योर एडीनियम्स कॉम्पैक्ट, मैंने सबको ही बताया हुआ है, हर सारे लाइव सेशन में बताता हूँ। जब भी कोई किसी का भी फोटो देखते हो आप, थाईलैंड वाले या मेरे या किसी भी अच्छे ग्रोअर का फोटो देखते हो, उनको प्लांट्स के पत्ते नोटिस कीजिए, एक ब्रांच में कितने पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए, फिर इसमें देखिए कितने पत्ते लगे हैं, और इसमें भी देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा किसी में भी ज्यादा से ज्यादा 3 मैक्सिमम 2 उतने ही सेट पत्ते रखता हूँ उसके ऊपर, उससे ज्यादा रखता नहीं हूँ मैं। एंड द रीजन बीइंग, क्योंकि अगर उसके पत्तों पे छोड़ दो, मतलब पत्ते छोड़ दो उसके ऊपर, वो लंबे खिंच जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाले ब्रांचेस को शेड Sunlight गिरने नहीं लगती है। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती इनर ब्रांचेस को, तो वो ग्रो नहीं हो पाती। इनर ब्रांचेस क्या होता है कि दे कम आउट, बहुत स्ट्रेस लेके और बाहर आ जाते हैं। आई शो यू इट, बताता हूँ एक रीजन। देखिए मतलब आपको अभी यहाँ पे सिलेक्टिव देखिए, लीफ प्रूनिंग करनी है, तो उससे आपकी जो हाँ। अंदर वाली है जो छोटी ब्रांचेस इमर्ज हो रही है ना, फिर ये प्रॉपरली बाहर आती हैं, इनको एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है तो ये आ जाती हैं बाहर। देखिए अभी इस एमराल्ड कॉर्न में पिछले साल यहाँ पे पूरा फोलिएज था, ठीक है, तो ये अंदर वाले जो है ना सब दब गए, इनकी ग्रोथ पूरा रुक गई। अभी इस साल इस पे मैंने पत्ते ही आने नहीं दिए, पूरे पत्ते काट के रखे हैं, तो ताकि ये जो ब्रांचेस जो हैं, ये ब्रांचेस अभी बड़े बनने लगे हैं, जो दे विल कैच अप विद दिस ब्रांच जो साइड में है। यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं ना सब, कि यूनिफॉर्म लेके आना है शेप, तो ऐसे ही लेके आते हैं। ये मोटा हो गया है, ये पतला हो गया, अभी इसको थोड़ा मोटा करेंगे तभी ये अच्छा प्लांट अच्छा दिखेगा, क्राउन शेप का आएगा। तो ऐसे सिलेक्टिव प्रूनिंग करनी है आपको, दैट्स वन वे। और एक और वे है कि भाई आप प्रून कर सकते हो। अभी मैंने आइडिया अभी इसमें भी पॉट मैंने हार्वेस्ट कर लूंगा सबकी, हार्वेस्ट करके इसको पॉट चेंज करेंगे। पॉट तोड़ दिया इसने, तो पॉट तोड़ना है, फिर इसको यहाँ से कट करूंगा मैं, यहाँ से कट करूंगा सबको एक साथ एट ऑन द सेम बेसिस, सबको इस लेवल पे कट करूंगा, ताकि यहाँ से दो ब्रांचेस आएंगी, उनको मैं बाहर लेके आऊंगा फिर वापस, ताकि ये मोटा बने, और यहाँ से जो ब्रांचेस बनी और भी हेल्दी बनेंगे। क्योंकि ये देखिए एकदम मेडिसा टाइप का बन रहा है ऐसे, मुझे वो नहीं चाहिए था। सो इट्स जस्ट ए पर्सनल प्रेफरेंस। कोई ऐसे ही छोड़ देते कि भाई हम मेडिसा बना लेंगे, कोई बात नहीं, मेडिसा से बना लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर थाईलैंड टाइप का लुक चाहिए तो भाई ऐसे ही होता है, क्योंकि थाईलैंड में हर प्लांट, बड़ा प्लांट प्रून्ड होता है। देयर इज नथिंग लाइक अनप्रून्ड एडेनियम्स इन थाईलैंड। ध्यान से देखिए, बट दे आर वेरी स्किल्ड इनफ दैट विल नॉट बी एबल टू मेक अप और फाइंड आउट इफ इट हैज बीन प्रून्ड और नॉट। वहां पे उनकी स्किल आती है। सो दैट्स वेयर अभी एक मेंबर ने कंफर्म किया है कि विंटर्स में उन्होंने एक बार रिस्क लिया था सीड पोड्स पे, तो उस सीड पोड को मैच्योर होने में ही 6 मंथ लग गए थे। ऑब्वियसली वहाँ पे तो कुछ खाना नहीं बन रहा है ना, तो जगदीप आपने जैसे बताया था कि उसकी किचन ही बंद हो गई, फिर उसको खाना चाहिए ना, खाना चाहिए भले ही पॉड लगे। बिल्कुल, एक्सोर्सिस को रिप्लीट करता है। वही, उसको अगर खाना नहीं, पॉड बनने में तो खाना चाहिए, खाना नहीं मिले, बच्चे को खाना नहीं मिले, बच्चा बढ़ेगा कैसे? तो खाना बनेगा फिर फरवरी में बनेगा, तब तक वही पॉड उसी पर लटका रहेगा। याद करोगे ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐड आती थी कि मदर को अभी डिलीवरी हुआ है तो उसका बाउल दोबारा भरने दो, उसके बाद सेकंड बेबी प्लान करो। तो वही केस मोर और लेस हर जगह चलता है, आपको अपने रिसोर्सेज को रिप्लीट करना पड़ता है, वो डिप्लीट हो जाते हैं, उनको दोबारा आपको रिचार्ज करना पड़ता है। एक बार मैंने दिखाया था, एक मिनट रुकिए दिखाता हूँ आपको, शायद मैंने हुई थी। I have a question. Yes. हम अपने एडिनियम्स को पाले से कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद, यहाँ पे पाला वगैरह बहुत पड़ता है। कवर कर दीजिए ऊपर से। और हमारा तो युग में एडिनियम्स में पाला लग जाता है और बड़े एडिनियम्स भी कल जाते हैं। कवर कर दीजिए। मैम एक बार स्क्रीन पे देखिए आप प्लीज। ये देखिए मैंने फाइबर की शीट डाली हुई है और परमेएबल है ये,
पाला वाला कुछ नहीं गिरता, आपके प्लांट ऊपर से बिल्कुल सेफ रहते हैं और कोई प्लांट में कैजुअलिटी नहीं आती फिर। मैं बिल्कुल मतलब दिल्ली के पास में ही रहता हूँ और ये देखिए मेरा एक भी प्लांट मतलब पाले की वजह से तो कभी भी नहीं मरा, और ना ही मतलब डोरमेंसी वाले चक्कर में कोई प्लांट मेरा मरता है, और सारे प्लांट बिल्कुल सही से चल रहे हैं। मतलब ऊपर बस मैंने शीट डाली हुई है पूरे इस पे मेरे स्ट्रक्चर पे। खाली छत पे शीट लगाने से चल हेलो हेलो। सर मैं तो जब विंटर्स में पॉलिथीन लगा देती हूँ, रात में फिर सुबह हटा देती हूँ। वो बिल्कुल मैडम उसमें मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर वर्केबल है, वो बिल्कुल वर्केबल है। उससे ज्यादा नहीं है ना, जैसा आते तो फिर शीट वीट तो नहीं लग पाते, मतलब इस तरह से। लेकिन अभी मेरे फ्लावर्स मतलब अडेनियम में बहुत सारे बर्ड्स हैं। अगर आप अपनी मतलब रूफटॉप पे इस तरह के एंगल्स अगर लगवा लें और उसको मतलब कनेक्ट करवा लें आपस में, तो ये मतलब मंकी केज लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मतलब एक उसके ऊपर फाइबर डलवा सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, और वर्केबल है जी। आप मतलब ओलों से भी बचेंगे और मतलब सीधी उसके ऊपर पाला भी नहीं गिरता है। साइड में लेकिन आप ये बैम्बू सब चिप्स प्लांट्स के लगा लिए सकते है, हो। एंगल तो लगे हुए हैं हाँ जी, लेकिन फाइबर शीट व्हाइट कलर की क्या सब प्लांट्स के लिए वर्केबल है? क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग भी मतलब वेजिटेबल प्लांट्स भी होते हैं विंटर्स में, उस टाइम पे आते हैं, तो फिर मैम ये मेरे इधर कैक्टस रखे हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, तो इनमें कोई इश्यू नहीं आता, इनमें बराबर फ्लावरिंग आती है सब में। सनलाइट आप ठीक देख सकते हो, मतलब ये शीट लगी है हाँ और ये हाँ सनलाइट देख सकते हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ओके शीट्स भी आती हैं, वो आपको वॉश हाँ हाँ करनी हाँ पड़ती हैं टाइमली। हाँ जी, तो वो भी आप लगा सकते हो। और वो अगर ठीक। लगाओगे तो आपको मतलब आपके प्लांट इतने मतलब ग्रीन दिखेंगे ना, बिल्कुल साफ सुथरे टाइप में। उनके ऊपर मिट्टी भी नहीं आती, बिल्कुल डस्ट फ्री दिखते हैं, ऐसे ऐसी और शाइन रहती है समर्स में फिर। भी सर ठीक रहेगा फिर? बिल्कुल मैम, ये उसके लिए मैंने समर्स में ना ये बनाया हुआ है, जिस तरह मैंने ड्रिप लाइन लगा के और यहाँ पे ये फ्यूमिगेटर्स लगाए हैं, जिनको ऑन कर देते हैं यहाँ पे पूरा मतलब रेन फॉरेस्ट वाला फीलिंग आता है। ये अच्छा वाला पूरा पोर्शन ऐसे बिल्कुल ह्यूमिड हो जाता है और सारे प्लांट्स एंजॉय करते हैं उस चीज को। आप ओके मेरे किसी भी प्लांट के मतलब फ्लावर्स देखोगे, लीव्स देखोगे ना, बिल्कुल ग्लोसी दिखेंगे सारे। सर अभी मेरे फ्लावर उसमें फूल काफी आ रहे हैं, मतलब बर्ड्स बहुत सारी हैं, हाँ जी, तो क्या बर्ड्स करूं? मैम निकाल दीजिए अभी तो ना। अभी अगर आप बर्ड्स के उसमें लालच में जाओगे तो फिर वो प्लांट की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है सर्दियों के लिए। अच्छा अब वही ये आपने देखो, भी आप आज ही इसके ऊपर कहा। देखोगे आप कितने बढ़िया फोलिएज है, लेकिन मैं नहीं हम्म रखूंगा इसको, इसको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर गया तो फिर वो अल्टीमेटली ये प्लांट मर जाएगा। ओके हेलो If you allow me, can I share my एक्सक्यूज मी experience from जी Yeah, मैम। yeah, सर sure, एक्सक्यूज sure, मी ma'am. You're welcome. क्वेश्चन आया है कि what is the actually right time to prune? I have put hooks on the walls. I can later put the picture also in the group. What I Okay. do, I have put hooks, U-shape hooks जी मैम। at a distance, and I have bought a few transparent bathroom curtains. Okay. So बिल्कुल I वर्केबल है hang मैम। them. हाँ, I hang them बारिश में बचने के लिए और विंटर्स और धूप में बचाने के लिए। मेरी जो डिस्कार्डेड पुरानी वाली बेडशीट्स होती हैं, मैं जी उन जी हुक्स को लगा देती हूँ। जी। I'll share my this thing curtains and bedsheet का pictures how I do it. Yeah, most welcome, ma'am. Please share that. Thank you. एक्सक्यूज मी जी सर। हेलो Yes. I have put up a question Yes, sir. during there were 3 days rain over here in Ghaziabad, and around 3 or 4 of my adeniums, they have become pulpy. What could be the reason? Although I had covered it, I did So I not did not allow get the the question. rain. I did not allow the rains to fall on it, and Okay. 3 or 4 of my adeniums have become pulpy. Okay, sir. What is the potting mix that you're using, sir, currently? The normal potting mix which is used for succulents, with sand Like, and what you call uh, porous material, and it was going on well since the past 3 or 4 years, but suddenly around 2 weeks back there was rain over here, and although I had covered it, but still they have become pulpy.
Okay, like yeah, you think you mean like you have lost the plant, or is it just soft? Yes, they are gone. They are goners. They've gone, I Okay. suppose, because they have become so pulpy that they don't stand at all. Okay. So when was the last time you repotted this plant? You said it's I 2-3 had years old, reported right? it So, in the beginning around March. okay. Around March, I had reported them. Okay, and Rest all were are there fine, flowers but on it? no, there were no flowers, and Mhm. there's actually A's, that is, and they were doing very well since the past 3 or 4 years. But all of a sudden, they have Okay. dropped dead. Okay, sir. See, from my experience, because all of my adeniums are grown in the open. Okay, so obviously, as you know, that it's my conditions are favorable, but I Mhm. don't lose any adenium because of root rot in rain, and I Mm. use coco pit as well. So if the media is porous, and as you say you have used porous media, so I don't think the Yeah, media should be it is very porous should be. because whenever I water it, the water flows down from the bottom. Okay, and how And long does it take? 10 seconds, it 15, takes around about, around 10 minutes. 10 minutes or seconds? No, say half, around 1 or 2 minutes, the water starts coming down. No, sir. It shouldn't be 1 or 2 minutes. If your adeniums are in the open, okay, it should be about maximum 15 seconds. That's 15 how seconds. yes, that's how porous the media should be. Oh, I see. That's the ideal potting mix for the adeniums that you have kept in the open. No, And but they were doing well since the past 3 or 4 years. yes, sir. It- I'm not saying that it's an immediate problem, because what happens is there might be a very small rot, okay, which might have if you have deep potted adeniums, some adeniums will have small rot, and it would have healed. And then again it would have rotted. So No, it might because have happened that case. I check each and every part of it. I even put it in, I put a little bit of water and see whether, I clean it up properly, and then I check up, and there was no rot at all. So That's rot why can be internal. Yeah, rot can be internal, but for the best advice I can give you is, if you are making porous media, is the media that drains out maximum 15 seconds. That's the best thing best way I can recommend. And No, even on I'm my talking sessions, about. I have covered that. Even in the rot also, rot is never visible to us. I have lost such huge plants. I'll tell you, last year I lost one of my Suriname patch, which is actually bigger than this plant. And I lost it just because of one tip rot, which I didn't notice. And it was doing very well. Actually, it grew that this big in just 2 years, Mhm. but I lost it in open rain. And Mhm. rot is never visible to us. So there are several issues. I think even pH plays a role in rot. I think Jagdeep might be able to expand on it. Jagdeep, can you just explain the pH role in adeniums? No, I don't know about the pH. हेलो सुबु सर, मतलब जो स्टडीज हैं दे शो कि एडेनियम्स लव रेन वाटर, और रेन वाटर का जो पीएच होता है दैट इज बिटवीन 4.5 5.5. सो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड्स, मैंने और ब्रजेश भाई ने. So what we did that we collected the rainwater and we supplied this to adenium, and after that we used the normal tap water. एक बकेट 20 लीटर पानी में हमने एक ढक्कन जो विनेगर आता है वो विनेगर डाला था, और वो विनेगर वाला पानी दिया था, और एडेनियम्स की ग्रोथ लाजवाब थी उसमें, क्योंकि पीएच एसिडिक साइड में आ गया था, और एसिडिक पीएच को प्रेफर करते हैं एडेनियम्स भी, और अपने सारे जीरोफाइट्स कैक्टस वगैरह में भी उसकी काफी अच्छी मतलब रिजल्ट्स देखने को मिले थे. आपको मतलब ज्यादा आप धीरे धीरे मतलब अपने प्लांट और मीडिया के हिसाब से आप मतलब बिल्कुल लिस्ट लेवल से स्टार्ट कीजिए. अगर आप 20 लीटर की एक बकेट है, उस बकेट में आप जरा सा डाइल्यूशन कर लीजिए विनेगर का, और एक पीएच मीटर इनफैक्ट आता है सर, तो यू मे यूज दैट. आपको मतलब परफेक्ट आइडिया रहेगा दैट व्हाट पीएच यू आर फीडिंग टू योर प्लांट्स.
I see. And after that, you can notice the changes. Before and after wale pictures mein, your mind will be blown. Okay. There was huge Okay. change. I can show you a plant. I was using the vinegar water on this plant. I can just give me a moment. Let me show that plant. Jagdeep bhai, your video is not visible. Actually, I was not on video, so that's why it was not visible. You may see this plant. This was having so much wrinkles and it was badly dehydrated. I have given the vinegar water to this plant, and you may see there are no wrinkles and it's perfectly puffed up plants. Same is with this one. This one is a black oak, and it's showing enormous result of that vinegar water. Sir, I have one question. Sir, Thank you. sir, I am from Jaipur. Sir, I have one question, please. मेरे पास ये 1 ईयर की सेटलिंग है, तो मैंने इसमें पॉट्स में करे थे. एक्चुअली अब ये ओवर ग्रोथ होके बाहर निकल रहे हैं, तो क्या अभी मैं इसे रिपोर्ट कर सकती हूँ? मैम, जयपुर में अगर आप हो तो कोई इशू नहीं है. हाँ, ये वाले आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो. आई हैव लॉट ऑफ सीडलिंग सर, सब में यही हाल है. आई एम स्कैर्ड कि ये कहीं खराब नहीं हो जाए. आप एक काम कर लीजिए, इनको मतलब हार्ड रिपोर्टिंग, मतलब प्रॉपर रिपोर्टिंग मत कीजिए, अभी सॉफ्ट रिपोर्ट कर दीजिए. इस जो ये पेपर वाली पन्नी लगी हुई है, इसको जस्ट आप रिमूव करके और बड़े पोट में इसको एज इट इज रख के साइड में मिट्टी डाल दीजिए. तो आपका डेनियम ऐसे का ऐसे चला जाएगा ये आगे. सर कैन इसमें मैं कंपोस्ट भी ऐड कर सकती हूँ साथ में? हाँ मैम, कंपोस्ट है ना, वो प्रॉपरली डिकम्पोज होने की, अदरवाइज उसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज्यादा रहता है, और नाइट्रोजन का कंटेंट अगर आपके डेनियम में ज्यादा रहेगा, देन योर प्लांट इज टेंड टू हैव लैंकी ग्रोथ. तो वो लंबा लंबा जैसे ओबेसम होते हैं वैसे चला जाएगा, कंपैक्टनेस अपनी खो देता है. I think ये ओबेसम ही है. नहीं, इससे अच्छा आप क्या कीजिए, डोंट ऐड एनी कंपोस्ट राइट नाउ. ओके, बेटर यू कैन ऐड इट थ्रू से लिक्विड फर्टिलाइजर मिलता है ना, तो आप यू कैन यूज इट इन फरवरी एंड मार्च. अभी सिर्फ रिपोर्ट, सॉफ्ट रिपोर्ट कर दीजिए. सर एनपीके नहीं, आपके ये आते सीवीड फर्टिलाइजर, ये सब आते हैं. लीव इन लिक्विड एज वेल, लिक्विड फॉर्म, तब यूज कर लीजिएगा. अभी सिर्फ इसको सिर्फ पॉटिंग मीडिया डाल के रिपोर्ट कर लीजिए. हाँ सुबह भाई, हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड है, जो माली वाली आते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, तो वो लोगों की एक टेंडेंसी है, वो डीएपी डालते हैं सभी प्लांट्स में, सर्दियों में डालते हैं. सर मेरा हाँ, वो डीएपी डाल देते हैं और डीएपी से प्रॉब्लम आती है फिर. सर मेरे एडेनियम की लीव्स पे एक ग्रीन कलर का क्रॉलिंग इंसेक्ट लीव्स खा रहा है. मैम, वो क्रॉलिंग इंसेक्ट एक्चुअली लार्वा स्टेज है, वो कोई ना कोई आपके यहाँ पे मोथ या बटरफ्लाई होगी, तो उसका लार्वा स्टेज है. अच्छा, ये आपका काम कर रहा है. वो लीफ तो अभी वैसे भी रिमूव करने हैं. सोलंकी जी, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा. हाय आकाश है. आप सॉफ्ट रिपोर्ट करेंगे तो एक तरीका है सॉफ्ट रिपोर्ट करने का. उसमें यह है, जो आपका प्लास्टिक वाला जो भी प्लांट है उसको डायरेक्टली पॉट में डालिए और साइड में सारा का सारा आप पॉटिंग मीडिया फिल कर दीजिए. उसके बाद उस प्लांट को जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एक स्पेस क्रिएट रहेगी, जिसमें जो कि मतलब डिस्टर्ब नहीं होगी. तो आप उसको निकाल के वापस उसको डालेंगे तो वो बहुत आराम से, बहुत इजीली रिपोर्ट हो जाएगा, रादर देन मतलब आप पॉलीथिन निकाल के दोबारा डालें, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें रूट्स का डिस्टर्बेंस लाजमी है. ऐसे रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती. सर मेरा तो वो ट्राई कर सकते हैं कि जाने के पहले आप उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर दे देते हैं, लाइक एनपीके, डीएपी हो जाएगा. जगदीप भाई बता रहे थे कि उन्होंने पत्ते काट देते थे. पत्ते काटने के बाद वो खुद डॉर्मेंसी चले जाते हैं. आप करते, आप क्यों नहीं करती हैं? लिटरली इट्स लाइक डिलीफिंग द प्लांट, इट गोज इन डॉर्मेंसी. फिर जब फरवरी मार्च में जब मतलब डॉर्मेंसी बाहर आता है, तब आप देती हैं एनपीके देती हैं, तो उसको डबल एनर्जी मिल जाती है, तो अच्छी फ्लावरिंग मिलती है. सो दैट्स
दे देती हूँ फर्टिलाइजर और ये, ताकि वो जब डोरमेंसी से निकले तो एकदम बूस्ट होके बाहर निकलता है। तो जब डोरमेंसी में उसको जितना भी अपन फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगता और उसमें बूस्ट होके निकलता है वो एकदम। तो लेकिन कई आप बार इट हैज मेरे ये जो ये वाला प्लांट है उसमें नो लीव्स एंड लॉट ऑफ करीबन फ्लावर्स रहते हैं, एक लीव्स भी नहीं रहती है सर। ठीक है, फिर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। लेकिन हम कभी मेरे यहाँ मैं मैक्सिमम जून में ही स्टॉप कर देता हूँ फर्टिलाइजेशन। मेरे ओबेसम्स जो भी हैं जून में ही जी। फर्टिलाइजेशन उनकी स्टॉप कर देता हूँ, ताकि सितंबर में 1 सितंबर अक्टूबर में एक फ्लावरिंग आती है। पूरा अभी चलने दे रही है। अब जयपुर में अभी बारिश काफी रही है तो अभी मैंने इनको प्रून नहीं किया है। कोई बात नहीं है, लेकिन प्लांट हेल्दी है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप शेयर कीजिए अपना क्या जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे लग रहे थे प्लांट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे सीखने की हमेशा कोशिश में रहती हूँ अरे कि ऐसा नहीं अगर है, बहुत मैं अच्छे। गलत कर रही हूँ सर, मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही देखिए, हूँ आपको, वैसे इन हम केस आई एम रॉन्ग तो मैं नहीं कुछ नहीं उसमें नया सुधार कर सकूं। देखिए, एडीएम ग्रो करने का कोई हार्ड एंड मेरा एक फास्ट रूल क्वेश्चन है। नहीं है। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, जयदीप सर से मेरा एक क्वेश्चन है। जयदीप सर, राम राम। राम राम जी। अच्छा जयदीप सर, जैसा मैं सुन रहा था कि आपके पास मोर देन 2000 प्लांट्स हैं। जी तो सर जब भी हम नर्सरी में जाते हैं कोई भी जी प्लांट परचेज करने के लिए, अगर उस पे फ्लावरिंग ना हो जी। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें कौन से कलर का फ्लावर आएगा? जैसे मेरे को सर व्हाइट एडेनियम लेना है और मतलब एडेनियम, किसी भी एडेनियम पे फ्लावर नहीं है, तो हाँ जी मुझे हाँ जी। कैसे पता चलेगा या उन्हें कैसे पता चलता है कि इस पे व्हाइट कलर का ही फ्लावर आएगा? सर ऐसा है, मतलब जो ये चीज है ना कलर वाली, मतलब जो अपने हाँ जी। नॉर्मल अरेबिकम और थाइसोको हैं उनमें तो एक पेट कलर है, पिंक कलर आके फ्लावर्स आते हैं। वो पिंक की शेड्स होते हैं मोर और लेस, कहीं डार्क हो गया कहीं थोड़ा लाइट हो गया। अदरवाइज जो कलरफुल है वो सारे ओबेसम्स होते हैं। और ओबेसम्स जो इंडिया में नर्सरीज में मिलते हैं तो दैट इज मोर और लेस इट इज थोरोली प्रोपोगेटेड इन कोलकाता। तो वहां वो जो ब्रीडर है वो कितना जेन्युइन बंदा है, उसने जो मतलब उसके ऊपर ग्राफ्ट किया है वो कितना जेन्युइन ग्राफ्ट है उसका, या उसकी मार्केट रेपो कैसी है, तो उसी चीज से ये चीजें डिसाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सिर्फ एक बंदा है जिससे मैं ग्राफ्टेड वाले परचेज करता हूँ, और अभिषेक चैटर्जी उनका नाम है। मैं उन्हीं से लेता हूँ सारे अपने ग्राफ्टेड वाले ओवेसम्स, और परफेक्टली वही कलर मिलते हैं जो वो क्लेम करते हैं। और मतलब इस चीज को आप कभी भी, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कई नर्सरी वाले क्या करते हैं कि लीफ को पकड़ के और उसको ऐसे उसकी वेनेशन देखते हैं, हाँ जी इसमें रेड फ्लावर है, हाँ जी इसमें ग्रीन फ्लावर आएगा, इसमें व्हाइट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज को लीफ देख के कि हाँ भी इसमें कैसा फ्लावर आएगा। वो जो वेनेशन देखते हैं वो सिर्फ एक लेमैन को पागल बनाने वाली बात होती है उनकी। वो तो फ्लावर तो मतलब या तो आपने खुद ग्राफ्ट किया हो तब आप श्योर हो सकते हो, या जिसने ग्राफ्ट किया है वो जेन्युइन बंदा है तब आप श्योर हो सकते हो। कोई अदरवाइज हिट मत एंड ट्रायल होता है। सीड ग्रोन में तो हम कभी भी, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल व्हाइट और ब्लू अगर मेरे पास सीड ग्रोन है और उनको मैं आपस में क्रॉस करके सीड पोड बना लेता हूं, तो इस चीज के बहुत सारे मतलब अगर आप जेनेटिक्स में देखोगे तो एक 9:3:3:1 की डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो होती है। उसके हिसाब से उसमें व्हाइट भी निकलेंगे, उसमें पर्पल भी निकलेंगे, उसमें जामुनी और ये क्या नाम है अपने के रेड भी निकल सकते हैं, पिंक भी निकलेंगे, मैरून भी निकलेंगे। वो एक ठीक है सर। ठीक है। शायद इसलिए मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत बार बताया हुआ है और अवेयरनेस भी क्रिएट किया हुआ है कि भाई आप जब परचेस करते हैं मैक्सिमम ट्राई कीजिए एक अच्छे हॉबीज से, जैसे अभिषेक चैटर्जी, मैं भी उन्हीं से लेता हूँ, और मैक्सिमम सीड ग्रोन प्लांट्स लेता हूँ उनसे, और फिर एक अमित कुमार हैंड्स, इन दोनों से। बाकी से किसी और से लेना ही नहीं है, भले ही वो अच्छा प्लांट हो कुछ भी हो, लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो दिखता है कभी मिलता भी नहीं है, इट हैपेंस। So you trust with one person and you just deal with them. And सभी को एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि भाई जब भी आप फोटो देखते हो, भाई मन ललचाता है कि भाई खरीद लें, लेकिन आपके पास जो चीज पहुंच रही है, सही चीज पहुंच रही है कि नहीं, वो भी जांच पड़ताल कर लीजिए। क्यों 90% मुझे जितना जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे वो सही कलर्स नहीं मिले थे, तो मैंने इसलिए ओबेसम अवॉइड ही कर दिए थे मैंने इनिशियली। ठीक है, तो आप मैक्सिमम just keep it to 1 or 2 sellers who are giving you trusted plants and colors.
Okay, brother. Any other questions? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. Sir, namaste. This is Hani Singh from Bangalore. I have a small question. हाँ जी, बोलिए अनिल जी. Sir, I have regular obeisms with me, but I never gave any kind of fertilizer or anything to boost their growth. So generally, I used to give only the cow dung manure or vermicompost kind of thing. So is there any particular fertilizers need to be given, or is there any cycle I have to maintain during their growing period? No, Hani Singh ji, because Bangalore's climate and Coimbator's climate is similar. Okay, so there is no difference in Bangalore's climate and Coimbator's climate, and I can Okay. tell you that our climate itself is a fertilizer. So you don't need to add anything extra to it. Just the vermicompost that you're adding is more than enough. Because what happens, जब आप artificial कुछ देते हैं, whenever you give anything artificial, say NPK, seaweed or anything else, it gives an immediate boost to the plant. Okay, but Okay. that will not sustain the flowering. जो भी changes आया हुआ है उसको sustain नहीं कर पाएगा. उसमें bunch में flowers आ गए, उसको सिर्फ एक आध महीना अच्छा flower आएगा, फिर बंद, फिर वापस आपको डालना पड़ेगा NPK. उसको आदत पड़ जाती है plant को. तो बेस्ट है कि भी नेचुरल फ्लावरिंग लीजिए. जैसे मैंने अभी टेरेस पे दिखाया था फूल सब, मैंने उसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट 1.5 साल पहले डाला था. इस साल इतने फ्लावरिंग उसमें निकल रहे हैं क्योंकि मैं उसको वाटरिंग इतना कम करता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेस इंड्यूस करता हूँ. मैं वाटरिंग कम कर करके स्ट्रेस इंड्यूस कर करके उनसे मैं फ्लावरिंग लेता हूँ. इट्स अ नेचुरल वे ऑफ गेटिंग मोर फ्लावर्स. सो दैट्स मोर देन इनफ फॉर गेटिंग गुड फ्लावर्स इन Bangalore's climate as well. I can tell you that. Okay, sir. So yes, you can give NPK, it will give you immediate boost, but if you're looking for a sustained a lengthier blooming period and a healthier plant, just do it what you would say, manually, like water the plant when it's dry and just add vermicompost just once in a year. That's more than enough. Hello sir, I am Seema Bansal. सर मेरे 2-3 ऐसे एडेनियम्स हैं जिनके मतलब बर्ड्स फॉर्म होती हैं, लेकिन उसके बाद या तो वो फ्लावरिंग नहीं होते, खिलते ही नहीं है, या वो बहुत ही खराब से खिलते हैं. ऐसा क्यों होता है? अच्छा मैम, आप ग्राफ्टेड ओबिसम्स की बात कर रही हैं कि? हाँ जी, ग्राफ्टेड वाला. अच्छा, उसका कॉडेक्स का साइज कितना होगा मैम? कॉडेक्स इज अ गुड साइज. इज इट 3-4 ईयर ओल्ड प्लांट्स हैं. अराउंड 1.5 इंच मोटा होगा कॉडेक्स तो, मतलब, और बेस तो उसका बहुत ही अराउंड 5-6 इंच मोटा है. तो हेल्दी प्लांट है. तो क्या होता है कि आप डिफॉर्म फ्लावर्स की बात कर रही थी ना? या एक रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए रहता है प्लांट्स को अपार्ट फ्रॉम एनपीके. So sir, I have added seaweed in that on. So seaweed, I can tell you, the seaweed is a natural fertilizer. Okay, natural fertilizers की एक drawback, जितना मैं, this is just my opinion, जितना drawback है कि उसका जो composition रहता है ना, केमिकल में मिला देते हैं कि हाँ 10 ग्राम ये डाला, 10 ग्राम ये डाला, 10 ग्राम वही होगा. लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं होता. कभी हम लोग किसी में पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, किसी में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली we don't mix it in an equal quantity as well. So seaweed is not an alternate to micronutrients. I like to tell this on record. Seaweed is not an alternate to micronutrients. अगर micronutrients deficiency दिख रही है आपकी plant में, better get a micronutrients nutrient fertilizer available in the market. और ज्यादा भी नहीं, आधे चम्मच से भी कम ही चाहिए होगा उसको. बट इन मार्केट में मिलेगा 2.5 किलो का पैकेट ही मिलेगा, लेकिन आधे चम्मच से कम ही वाला चाहिए आपको. उतना ही यूज करना है उसको. So basically what we should call it micronutrients for adeniums? No, it's available for all fruiting and flowering plants. बोलिए. हाँ जी, एक चीज मैंने नोट की है, मतलब जो टेक्निकली पढ़ा हुआ है ना बुक्स में, उसमें यही लिखा हुआ है, जो सीवीड होता है, सीवीड लोग कंफ्यूज करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट से. रादर सीवीड एक असिस्टेंट है, मतलब वो जो सेलुलर लेवल पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उस चीज को बूस्ट अप करता है सीवीड. दैट्स इट. उसके अलावा सीवीड का कोई अलग रोल नहीं है. मतलब आपकी जो रूट्स का अपटेक है, रूट्स कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट मीडिया में से ले सकती हैं, उस चीज को बूस्ट अप करने के लिए सीवीड का रोल है. तो वो एक बीच में मतलब एक कैरियर का ही काम करता है.
अदरवाइज जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो आप मतलब पैकेट आते हैं मैम, 250 ग्राम के आते हैं, वो आप जितने मर्जी ले लो। ओके। हाँ जी, पर इनफैक्ट सर मैं ऐसा है जैसे मेरे पास बहुत सारी जो बर्ड्स यूज करता हूँ वो आती डाल भी हैं, दूंगा मैं आपको पिक्चर्स उसके। या मेरा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन है सर एक मेरा और रिमेनिंग क्वेश्चन है कि बर्ड्स हाँ। आती बहुत हैं बट कुछ खिलती ही नहीं है, उससे पहले ही गिर जाती हैं, उसके लिए व्हाट आई कैन डू? मैडम आप उस पे वाटरिंग साइकिल पे ध्यान रखिएगा प्लीज, उस पे क्लाइमेट भी प्ले करता है, और कोई के क्या होता है कि डबल पेटल के ज्यादा गिर जाते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है किसी प्लांट में तो उसका पहला होता है कि फ्लावर सही से नहीं पकड़ेगा, ठीक है, फ्लावरिंग सही से नहीं होती, फिर उसमें जो भी अगर पॉड्स भी लगे तो पॉड भी हेल्दी नहीं रहती, ठीक है। सर तो आप दिस सबके माइट, प्लीज नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी क्वेरीज एटलीस्ट आपसे पूछ तो सकेंगे कभी। पर कोई मेरे बात नहीं, आपका में ग्रुप है, डेंड्रोफाइल्स है, एडिनियम हेल्पलाइन है, फिर हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल सोसाइटी है, आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। वी आर एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब दिन में तो एटलीस्ट 18 घंटा 20 घंटे तो वहीं पे फेसबुक पे गुजारते हैं। अभी फैमिली वहीं बन गई है अभी अपनी हमारी, तो यस, तो Thank यू you आर so much, मोस्ट sir. वेलकम। कैन आई Thank पुट you माय so much, sir. क्वेश्चन? यस गो अहेड मैम। मेरे दो क्वेश्चन है, लाइक यू कैन सी द अडेनियम हियर, दिस इज ऑलमोस्ट 3 इयर्स है ना, बट इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं आई, सॉरी ये अरेबिकम है और काफी बड़े हो गए हैं, बट सर उसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं आई है, तो ऐसा क्यों? मैम आपका छत क्या, आपके छत से डायरेक्ट सनलाइट आती है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल आती है, और मैं शिफ्ट भी करती रहती हूँ, ज्यादा सनलाइट में भी रखा है, बट फिर भी वो फ्लावरिंग नहीं आ रही है। क्योंकि और जो प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 3 to 3.5 इंच का है। अच्छा, आपने फर्टिलाइजर कौन सी यूज की हुई है? मैंने कंपोस्ट यूज किया है। अच्छा, और कंपोस्ट ही यूज किया। अच्छा, देखिए आपके पत्ते जो दिख रहे हैं ना, आप वापस वो पत्ते पे ले आइए, मैं सबको एक्चुअली एक चीज बताना चाहता था। एक मिनट, ठीक हाँ है, बिल्कुल। देखिए इस ऐसा डार्क ग्रीन पत्ते में अगर वैसे डार्क ग्रीन पत्ते होंगे ना तो उसमें हाँ, फ्लावरिंग होगा ही नहीं। क्यों ऐसा? गारंटी है, क्योंकि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन गिरा हुआ है। ओके नाइट्रोजन डजंट असिस्ट इन फ्लावरिंग। ओके अगर इसके इतनी ये प्लांट इट लुक्स हेल्दी बट या इट वोंट फ्लावर बिकॉज ऑफ दीज नाइट्रोजन कंटेंट इन योर कंपोस्ट। इसलिए मैं पूछ रहा था, 2 बार मैंने इसलिए पूछा कि क्या आपने कुछ और एक्स्ट्रा डाला हुआ है, क्योंकि नहीं कुछ कंपोस्ट जो भी नहीं डाला, सिर्फ कंपोस्ट डाला है। तो कंपोस्ट जो डाला हुआ है आपने, इधर इट वुड नॉट हैव बीन डिकम्पोज प्रॉपर्ली, इसलिए ज्यादा नाइट्रोजन लग गया उस पे। ओके सेकेंडली जो सनलाइट जो है इट मे नॉट हाँ बी इनफ, क्योंकि इतने अरेबिकन में इतने ब्रॉड लीव्स नहीं बनते। इफ यू गिव फुल सनलाइट 8 आवर्स और 9 आवर्स सनलाइट, इतने ब्रॉड लीव्स नहीं बनते उसमें, ओके ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको फ्लावर्स चाहिए तो एक टिप बताता हूँ, आप अगले 1 साल इसमें कुछ मत डालिए, कंपोस्ट ओके वम्पोस्ट कुछ मत डालिए, और वाटर इट ओनली व्हेन इट्स बोन ड्राई। ओके और ये राइट पत्तों का कलर चेंज होगा धीरे धीरे, इस हाँ पत्तों हाँ का कलर थोड़ा पेल ग्रीन होना चाहिए। ओके इसका जब पेल ऊपर ग्रीन का होगा आप ना तभी उसमें 1 बर्ड्स इंच का बनना मीडिया चालू निकाल होगा। सकते हो सुबू भाई, ऊपर का 1 इंच हाँ का जी, हाँ मीडिया जी। निकाल के, और फ्रेश मीडिया अगर इसको आप टॉप अप कर देंगे तो वो भी काफी हेल्प करता है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ी हुई है उसको तो फेब में मतलब तो इसका फ्रेश मीडिया डाला भी था, बट स्टिल कॉडेक्स तो है उसका, पर फ्लावरिंग नहीं हुई। नहीं जगदीप भाई क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का कंटेंट कम करने के लिए ऊपर का 1 इंच हटा दीजिए बोल रहे हैं, अच्छा 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 हाँ ओके जी, उसमें क्योंकि वर्जिन बहुत मीडिया सारी डाल दीजिए। नाइट्रोजन है इसमें। हाँ जी, ओके ओके इतने सारे इतना हेल्दी लीफ में कभी फ्लावर नहीं आता। इट हैज टू ओके बी ओके। थोड़ा पेल ग्रीन रहेगा तो तभी फ्लावर बनेगा। हेलो May हेलो I सर, ask, please? हेलो Hello. हाँ सर, यस मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ओबेसम प्लांट्स हैं इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे बारिश के बाद में उनकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हो गई है, तो आपने बोला जैसे विंटर में जाने मतलब डोरमेंसी में जाने से पहले उनको डीफॉलिएज करना है, तो उनके ब्रांचेस की प्रूनिंग करनी है या उनको ऐसे ही छोड़ना है? देखिए आप बेटर वुड बी टू शो द प्लांट, क्योंकि क्या होता है कि इफ इट्स अगर प्लांट ब्रांच बहुत सॉफ्ट है, हार्ड ब्रांच नहीं है, हार्ड ब्रांच सॉफ्ट ब्रांच अगर शायद आपको समझ में ना आए, अगर उसका स्टेम अभी भी आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है तो उसको काट दीजिए, बेटर ही वो काट दीजिए।
तो सर मार्च में जब वो डोरमेंसी में से निकलेंगे तो उसकी जो पहले से हमने प्रूनिंग कर रखी है तो उसमें से स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा फिर? हो जाएगा, लेकिन आप देखिए अगर प्लांट का, अभी मैं सेशन में इसलिए यही बता रहा था कि भैया अगर सीडलिंग्स का और ये नया ब्रांचेस का भी एक ही रिलेशन है, क्योंकि न्यू ब्रांचेस आर वेरी सॉफ्ट ऑन एनी प्लांट्स। अभी एनपीके मैं क्यों देने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाई एनपीके डालोगे तो नए नए शूट्स बनने लगते हैं विच आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, उनके सेल वॉल्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उसके नहीं स्किन भी सर, बहुत अभी सॉफ्ट। यहाँ नहीं सर, अभी कोई हमने फर्टिलाइजर जैसे नहीं दे रखा है, प्लांट भी ओल्ड है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है और संग संग फ्लावरिंग भी हो रही है, तो फॉलिएज ग्रोथ भी बहुत है, ब्रांचेस का ग्रोथ भी बहुत है। अब 15 डेज बाद ये डोरमेंसी में आने लगेंगे, तो ये प्लांट जो है बहुत लेगी से दिखेंगे। यदि सिर्फ डीफॉलिएज हम करके छोड़ देते हैं तो ब्रांचेस को अभी कट करना चाहिए, या जब ये डोरमेंसी में निकलते हैं फरवरी में, यदि हम ब्रांचेस को तब काटना चाहिए या अभी काटना चाहिए? Ma'am, I would recommend doing it in February according to my experience, but I think just now recently Miss Solanki, I believe Solanki, someone shared that वो पहले ही काट देते हैं, अभी काट देते हैं। So हाँ you can सर, do यही that. कंफ्यूजन है कि बहुत लोग कहते हैं कि अभी डोरमेंसी में जाने से पहले थोड़ा प्रूनिंग कर देना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं, जब डोरमेंसी में से निकलने का समय आता है उसके 15 दिन पहले आपको ब्रांचेस कट करना चाहिए। तो ये बहुत कंफ्यूजन है सर। Better if you are confused, then do it when it's during February and March. अगर आपसे confusion हो रही है, क्योंकि I can just share my experience, क्योंकि मैंने कभी भी ओबेसिम्स के प्रूनिंग की नहीं है अक्टूबर नवंबर में। मैं जो भी करता हूँ तो मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ तो जैन में स्टार्ट हो जाती है सीजन फ्लावरिंग। सुबह भाई पता प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ब्रांचेस फरवरी एंड में या मार्च स्टार्टिंग में प्रूनिंग करेंगे, वो फ्लावरिंग का टाइम होता है, उस टाइम पर हमने ब्रांचेस को प्रून कर दिया तो फ्लावरिंग तो गई। संदीप भाई सही है, गई, लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रून करते हो ना, उसमें से जो बर्ड्स बनता है उसमें पहले फूल ही आते हैं, उसमें पत्ते नहीं निकलते। आप नोटिस की होगी शायद। हार्ड प्रूनिंग मारते हो उसमें बंचेस बर्ड्स निकलते हैं, और आप सिर्फ ब्रांच ग्रो करो तो सिर्फ एक ही ब्रांच ग्रो होगा, लेकिन जब प्रून करते हो उसमें से 3-3 4-4 ब्रांच निकलेंगे। डोरमेंसी से अवेक करता है ना जी, तो यही होता है, शूट से पहले उसमें बर्ड्स आती हैं और बर्ड्स ओपन होती हैं, साथ के साथ फिर नीचे से फ्रेश शूट आ जाती हैं। अगर ऐसा करें कि अभी उसको एज इट इज छोड़ दें, एक फ्लावरिंग ले लें, उसके बाद प्रून कर दें। You can do that. सर एक क्वेश्चन मेरा और था। नहीं, I'm just asking, मैं देखिए संदीप भाई, मैंने जैसे बताया हुआ कि मैंने तो कभी प्रूनिंग की नहीं है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप डिफोलिएट करते हो डोरमेंसी से पहले, अगर वो स्टेम अगर ग्रीन है, आपको पता है कि सॉफ्ट स्टेम कैसे रहता है, अगर ग्रीन दिख रही है, जो जहाँ पे वो सॉफ्ट स्टेम स्टार्ट हो रहा है वहां से काट दीजिए। बेटर आप काट रहे हैं तो वहीं से काट दीजिए, वो सॉफ्ट स्टेम से फ्रॉस्ट से जरूर खराब होगा वो सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, अब शायद मैं उसको एक पोस्ट बना दूंगा ग्रुप में, शायद आपको सब पता चले कि सॉफ्ट स्टेम और हार्ड स्टेम में क्या होता है, फर्क क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी, क्योंकि एक्सक्यूज मी सर, आई एम सीमा बंसल। सर मेरे प्लांट्स पूरे बारिश में रखे हुए थे, तो जब बारिश से सडनली धूप निकलती है तो ये थोड़ी सी लीव्स टू नोटिस, ये ऐसे ब्राउन पैचेस हो। नेचुरल है, कंप्लीटली नेचुरल। These are all natural. नेचुरल है, आगे उसमें प्रॉब्लम होती है ऐसे में। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। संदीप भाई, एक और क्वेश्चन है किसी का? I think we have covered all the things and answer mostly questions, and we are also running 45 minutes late. I think we have to wind up now. Okay, fine. So, thank you, guys. Yes. Ma'am, are you there? कर दे, अगर तड़का डाल रहे तो डाल सकते हो।
my screen visible to all of you? Yes, yes. Rama ma'am, are you there? आ गई मैं. We have completed. Thank you so much, Subbu Raj and Jagdeep ji. इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था कि क्या बताएं. I think जितने भी listeners थे, they couldn't have enough of you. उनके questions पे questions lined up ही थे. So we are very thankful. I would request Rashmi ji to give a vote of thanks to our speakers. संदीप एक फोटो भी खींच लो सबकी. Everyone, please switch on your cameras. मैडम लाइट ऑन कर दो जरा. अरे फटाफट जाओ. Done. I have captured the image. I have captured the image. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you all the audience. Okay, thank you. Thank you speakers. Thank you, thank you. इस सेशन के बाद लगता है एक सेशन और बहुत जरूरी हो गया. Yes, ma'am. सबके क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए होंगे. To understand much more, yes. Thank you very much. Thank you You're so much. most welcome. Thank you, Jai Hind, Sandeep. everybody. Thank you so Jai much. Hind. Thank you, Jai sir. Hind. Bye-bye. A wonderful session. Okay, okay. Okay. हार्ट रेट भी उन्होंने बता रहे 65-70 गया करके.